Okay. So Assalamualaikum everyone. So Samar, मैं आपका introduction करा देती हूँ पहले सबसे. So we have with us Samar today. Can you all hear me? yeah, I guess Okay. everyone. So I don't know if anyone Okay. is. Okay. Okay. So we have Samar with us today, who will be the trainer for go-to-market planning. She is the director of Leon Traders Inc., founder of the Farms, member of the National Association of Women for Business Owners, and a member of Southern New Jersey Chamber of Commerce. हमारा कोशिश ये होती है कि हम स्टार्टअप्स को जितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझा सकें हम समझाएं, क्योंकि थ्योरी तो किसी को भी गूगल में मिल जाएगी. तो समर इज समबडी हु इज परफेक्ट फॉर दिस. तो समर, ओवर टू यू. आप सबसे पूछ सकती हैं कि स्टार्टअप स्टेजेस क्या हैं या हाउ यू वांट टू टेक इट फॉरवर्ड. आई हैव योर प्रेजेंटेशन नाउ. Great. Thank you so much, Amna. Okay जी. आप मुझे मैं चाहूंगी कि स्टार्टअप जो है वो अपना थोड़ा सा मुझे तारुफ करवा दें, वो किस स्टेज पे हैं, क्या कर रहे हैं, और जो है ताकि मुझे कुछ समझ आए. One of the startups I know, I don't know the startup, but I know the person, Aways. Are you there? Yes, Samar, I'm here. How are you? I'm good. How are you? Doing great, alhamdulillah. So we know each other since the Citizens Foundation time, I guess. That's right. Okay. Can you tell me a bit about your startup? So we started Kaprapur back in 2021, and initially we were aiming for the pre-loved clothing and anything which is made up of kapra, because that's what the idea. But we took a pivot, and now we have successfully completed the application development of live commerce, where we allows retailers, sellers, social sellers, and businesses to live stream and sell their products. So we completed the development. Application is available for the Android users, and we have already started bringing partners on board. So they are having their live streams, and we are in a it's a pilot testing phase, I would say, but it's all set for the users to use, and we are further moving on to advance the application. But at the moment, we are just wanted to test this feature that we have developed, and yeah, that's all. That's great. So you are in the initial phase, and are you selling like a pre-loved on this? We can sell only the pre. No, anything which is made up of kapra, because when we did our research on the social media, people are literally selling anything from jayanamas to abaya, from curtains to cushion, from bed sheets to towels. So they are selling literally everything. So being as a tech entrepreneur, what I'm aiming is to solve the problem that the people are facing. One is the too much and high ratio of scams that are happening on daily basis. People see something else, they've been delivered with something else, they ended up losing their money. And the other core feature that we are offering is the quality check, that our rider is being trained on certain areas where rider will be packing the product and making sure that what he's picking up is same as the picture is being shown to the buyer, so that we can reduce the scams. I would say not 100%, but at least 80 to 85 or 90% within our platform, so that we can deliver the maximum value to the consumer. That's great, because yes, I faced a lot of scams when I was in Karachi. Yeah, it's too normal. Hello. Yep, I can hear you. Oh, that's great to know. Let's move. Can I have someone who's there? Hassan Abbasi. Hassan, are you there?
Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you? Alhamdulillah. This is Hassan from Tantra. So it's basically cloud-based salary processing platform for startups and SMEs. We have automated all the processes of the payroll, including taxes and benefits and etc. It's basically custom designed for startups and SMEs who cannot afford, high-paid softwares and so it's specifically developed for startups and SMEs. For their employees, right? For organizations. Sorry? For organizations, startups and SMEs. Oh, okay. And how long are you doing that? Since how long? It's been for around 1 year. Oh, okay, 1 year. And how is it going? It's going. It's still on the early stage, and we have been working with some of these startups that who are using our system. So it is still early age, but it's going on. Okay, that's great. Thank you so much, Hassan. Now we have Arisha Irfan. Arisha, are you there? Assalamu alaikum, Arisha. Oh wait, she's still on mute. Can you hear me? Yes, Samar, I can hear you. If Arisha is not there, can we have Malaika, please? Yeah, sure. Malaika, can you please introduce yourself and tell a little about your startup? Okay, anyone else available? Waqas? Okay, so we have somebody, we have Osama Khalid, who has written his about his startup in the chat. Content Drips, it's a SaaS content creation platform built for personal brand. Currently, it's a design tool, something like Canva. We are in revenue stage, bootstrapped so far. Okay, content creation platform built for persons. Canva. Oh, okay. Shuja, are you there from Vocalize? Can you hear me? Yes, I can hear you. My name is Shuja Abdi. My company name is Vocalize. I and Dr. Sajjad is working on an AI product. We are making a product that can search on a three criteria. One is text-based, another is voice-based, and the third one is the image-based. Till now, we have developed a product for the text-based research where you can write something and it can connect to the e-commerce sites and can give you the products that you have written in a text form. The real challenge is to form a application where we can search through the voice and through the images. We are working on it, so it is on the R&D stage. Oh, okay, great. Okay, can we share my PPT? Thank you so much, Shuja. Thank you so much. Waqas, are you there? Waqas, hello. Hello, assalamu alaikum. Walaikum salam. So my name is Waqas, and actually what we developed Pakistan's first mineral water marketplace that gives the accessibility and delivery of hygienic, standardized and certified mineral water plants to consumers. So in simple, you can understand it connects the suppliers and the consumers and gives the options.
on the basis of different certification and different standardization as per Pakistan law. So let's see the PSQCA certified and the non-PSQCA certified Clean Food Authority certification. On the basis of the mineral water, they use the origin, either they use Germans, local Pakistani minerals. So on the basis of these categories. So right now we are at the break-even stage. Okay. Okay. Thank you so much. Okay, we can have the intros in between as well. Sure, Like- perfect. And okay, so जो मैंने PPT बनाई है, that's very general and very basic because literally मैं ऐसे लोगों में से हूँ, मैं कोई बुकिश बातें या बहुत सारी चीजें अगर आप ढूंढना चाहेंगे गो टू प्लानिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में या गो टू मार्केट स्ट्रेटेजीज के बारे में, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा इंटरनेट पे, गूगल पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा. बट सिंपली मैं उसमें से कुछ भी नहीं बताना चाहूंगी. मैं चाहूंगी कि जो मैंने अपने स्ट्रगल्स किए पाकिस्तान से यूएस आकर और यहाँ पे जो मैंने स्ट्रगल्स फेस किए और मैंने क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ली हैं, मैं उसी के रिवॉल्व इसी के इर्द गिर्द घुमाऊंगी. इफ यू अगर कोई कंफर्टेबल है तो मुझे बता दे कि आर यू रेडी टू लिसन टू द रियल लाइफ सिनेरियोज या फिर किताबी चीजें. Real life. रियल लाइफ, बिकॉज मैं बिल्कुल किताबी बातें नहीं कर सकती. आई एम सॉरी. तो okay, so I'm starting with my story, a little bit intro. I was doing business in Pakistan और मेरा द फार्म्स के नाम से ही हमारा बिजनेस था. उससे पहले मैंने काफी चीजें स्टार्ट की और उसको चलाया, बट जब फार्म्स किया तो फिर हम उसी के अंदर ही कूद गए पूरे तरीके से. बेसिकली उसको करने का मकसद ये था कि नेचुरल और ऑर्गेनिक की तरफ खुद भी आ जाएं और लोगों को भी ले आए. तो पाकिस्तान में आई वाज डूइंग इट विद माय हस्बैंड और वो मेरे साथ थे उस चीज के अंदर. तो जो है वो मुझे बहुत मैं एक काफी कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से थी. मेरा जो मैका है, यू कैन से दैट्स मेमन कम्युनिटी, जहाँ पे खवातीन को बहुत ज्यादा कोई आगे बढ़ने नहीं दिया जाता रिगार्डिंग बिजनेस. सो बिजनेस में कूदना इटसेल्फ मेरे लिए एक बड़ा स्टेप था. और जो है वहां पे खैर पाकिस्तान में जब हमने फार्म्स शुरू किया तो आई वाज लाइक आई डोंट नो हाउ एम आई गोइंग टू डू द सेल्स एंड मार्केटिंग थिंग. तो जो स्ट्रेटजी मेरी वहां पे काम करी दैट वाज टोटली ऑनलाइन स्ट्रेटजी, सोशल मीडिया स्ट्रेटजी. मैं कहीं बाहर नहीं निकली, मैंने कुछ नहीं किया. दैट वाज टोटली ऑनलाइन. आई वाज गेटिंग ऑर्डर्स. हम वाहिद कंपनी थी जिन्होंने यूएसडीए ऑर्गेनिक सर्टिफाइड आटा इंट्रोड्यूस किया था उस वक्त, और हमें नहीं समझ आ रही थी, बट यस स्टेप बाय स्टेप हम लेके चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे. और आटा करना इज नॉट एन इजी थिंग. आपके जो है वो वीट या गंदम ऑर्गेनिक आपके घर में आई नहीं है, आपने उसको पिसवाना है, उसके थैले भरने हैं, व्हाटएवर, वो सारा प्रोसीजर हमने खुद किया. और फिर उसको मार्केट तक लेकर आना, उसको लोगों तक पहुंचाना, तो वो चीजें भी हमने खुद की. दैट वाज अ वेरी टफ पार्ट. बट ऑनलाइन जितने ऑर्डर्स हमारे पास आ रहे थे उससे हम खुद शॉक में थे कि पीपल आर ऑर्डरिंग ऑनलाइन, वो भी पाकिस्तान में, वो भी आटा जो आपको आराम से टिक्की से भी मिल जाता है, जबकि हमारा आटा वाज अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव साइड. और बाकी ये कि फिर हम एक्सपोर्ट क्वालिटी मैंगोज की तरफ भी आए. हमने वो भी किया, वो हम लोकल स्टोर्स की तरफ लेकर गए क्योंकि हमें था कि हम लोकल स्टोर्स में मैंगोज कर सकते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि लोकल स्टोर्स जो हैं, जब तक आपकी इतनी पाकिस्तान में खासतौर पे कराची में जो हमने फेस किया, आई डोंट नो आप लोग या प्रोडक्ट रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन्होंने क्या फेस किया होगा, बट पाकिस्तान में या कराची में जो हमने फेस किया कि भाई स्टोर्स आपको बहुत इजीली जवाब नहीं देते टू प्लेस योर प्रोडक्ट. तो हमने पहले साल में सिर्फ 250 केजी आटा बेचा था, बट देन नेक्स्ट ईयर आफ्टर डूइंग एन ऑनलाइन मार्केटिंग वी सेल लाइक 10 टन आटा. तो वो सिर्फ ऑनलाइन के थ्रू किया था क्योंकि जो है हमारे पास कोई और वे आउट नहीं था.
टू पुट इट इन द स्टोर, और स्टोर्स जो है वो हमें बिल्कुल वो नहीं कर रहे थे। पैकेजिंग हमने खुद की, बहुत सारी डिफरेंट पैकेजिंग ट्राई की फॉर द मैंगोज एंड फॉर द आटा। तो बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस आया था विद द ऑनलाइन मार्केटिंग थिंग। मैंगो हमने पहले साल 300 kgs किया, एंड द नेक्स्ट ईयर वी जंप टू लाइक 3.5 टन्स। तो हम इस तरह से बढ़ाते रहे, बट देन सडनली मुझे वहां से सबको यहाँ पे आना पड़ा, बट मुझे फार्म्स को यहाँ पे भी लेकर आना था। बट आई डोंट नो, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कोई फूड प्रोडक्ट में स्टार्ट नहीं कर सकती थी यूएस में आने के बाद। तो जब मैं यहाँ पहुंची हूँ, मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज द मार्केट वाज टोटली न्यू। और मार्केट में मतलब अगर मैं ये सोच कर आई थी कि मुझे पिंक हिमालयन सॉल्ट यहाँ पे लेकर आना है, लेकिन जो है जब व्हेन आई रीच द मार्केट्स, तो इट वाज ऑलरेडी देयर बहुत तादाद में। मैंने बहुत 1 साल तक मैंने कंपनी रजिस्टर कराने के बाद रिसर्च की। 1 साल तक मैंने कुछ नहीं मंगवाया यूएस में, बिकॉज द मार्केट वाज टोटली न्यू फॉर मी। और ऑनलाइन वाली चीज मुझे लग रहा था यहाँ पे काम नहीं करेगी, तो मेरी ये गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए थी। यहाँ पे ऑनलाइन बिल्कुल काम नहीं की उसने। यहाँ मुझे जब हमने सॉल्ट का एक मतलब आई वाज मीटिंग पीपल हियर, मैं जिसके रेफरेंस से मिल सकी आई वाज मीटिंग। कनेक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात इन योर प्रोडक्ट लॉन्च, या आपने प्रोडक्ट को बेचना है या आपने प्रोडक्ट की मार्केट करनी है, एक तो आपको कनेक्शन सबसे पहले, जो मैंने यहाँ आके मुझे सबसे ज्यादा फील हुआ कि आई नीड कनेक्शंस, बिकॉज आई एम क्लूलेस हियर, बिकॉज आई वाज न्यू हियर। पाकिस्तान में भी अब आई हैड कनेक्शंस, तो इसीलिए बहुत ज्यादा जल्दी हम उस स्टेज पे पहुंच गए थ्रू ऑनलाइन मार्केटिंग। तो जो चीज मैंने लाइफ में सीखी है इन सब स्ट्रगल से, वो ये थे कि कनेक्शंस। तो मैंने यहाँ आके भी कनेक्शंस बनाने की कोशिश की। फिर मैंने वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन की। आई नीड टू प्रमोट माय बिजनेस। मैंने अपनी प्रोडक्ट लानी थी, उससे पहले उसको मैंने बेचना था, बिकॉज मैं प्रोडक्ट लाके अपने पास स्टोर नहीं कर सकती थी। तो प्रोडक्ट लाने से पहले मुझे उसको सेल करना था। तो जब मैंने देखा कि सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट इज, मतलब वहां यहाँ पे आप कुछ भी देख लें, हिमालयन सॉल्ट हर मार्केट में, अमेज़न पे हिमालयन सॉल्ट है। लेकिन जो है वो फिर भी मैं उसको यहाँ पे लेकर आई। पहले तो हमें किसी ने ऑर्डर दिया, हमें बहुत मिसगाइड हुई मैं यहाँ पे, बल्कि कुछ एक बंदे ने ऑर्डर देके उसको कैंसिल किया। द कंटेनर वाज हियर ऑन पोर्ट एंड ही कैंसिल्ड दैट ऑर्डर। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं इतने सारे सॉल्ट का क्या करूं, और इतनी सॉल्ट की प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाई थी और सॉल्ट मंगवाया था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस वक्त मैं क्या करूं। तो उस वक्त की मुझे कोई स्ट्रैटेजी चाहिए थी, व्हाट टू डू नेक्स्ट। सो मुझे कुछ नहीं सूझा। आई जस्ट पुट दी सॉल्ट कार्टन्स in my car and I went to from shop to shop. I was connecting with people, I was connecting with local shops and local grocery stores. मैं वहां रखवा के आ जाती थी कि आप उसको ट्राई करवाएं लोगों को। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे ये सब भी करना पड़ेगा, बट टू सेल अ प्रोडक्ट और मार्केट स्ट्रेटेजी आपको चेंज करनी पड़ी, बिकॉज ऑनलाइन कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो दैट वाज द मार्केट स्ट्रेटेजी एट दैट टाइम, जो मैंने उसको अपने उसमें बिजनेस के अंदर लेकर आई, टू सेल माय सॉल्ट। अब तक किसी के कोई सवाल है? आई होप कोई सो ना रहा हो। हेलो हेलो। जी सब Hi, अवेलेबल। You're audible, sir. hear you. ओके, आई होप नो वन इज स्लीपिंग बिकॉज रात पे 1 जो है वो मेरा यहाँ पे बज रहा है, वहां पे गालिबन सुबह हो रही है। अगर मुझे सामने से जवाब आते रहेंगे तो आई विल बी मोर एक्टिव। बिल्कुल समर, मैं इधर ही हूँ, और स्टार्टअप्स को मैं फाउंडर्स, आपके लिए ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप फौरन हैंड रेज कर लें या अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लें, एंड प्लीज मेक इट इंटरैक्टिव। यस, थैंक यू सो मच आमना। अच्छा जी, तो मैं स्टोर टू स्टोर जा रही थी। आई वॉज गोइंग स्टोर टू स्टोर, और मुझे ऐसा लगा कि अच्छा ठीक है मैं कर लूंगी। जो मैंने कंटेनर मंगाया दैट वाज अराउंड 2019 अगस्त,
और अभी मैंने स्टोर टू स्टोर जाना शुरू किया था, रखवाना शुरू किया था, एंड द पेंडेमिक वाज देयर। यहाँ पे सब कुछ बंद हो गया। अब उस वक्त मेरी समझ ना आए कि मैं उसको क्या करूं, बिकॉज आई नीड टू कीप इट इन द वेयर हाउस। और यहाँ पे ऑनलाइन कोई भी स्टोर या आप बड़े, मेरा ये, मैं जब इधर आई तो आई वाज लाइक ओके फाइन, आई गो टू द वॉलमार्ट, आई गो टू द रिटेल, बिगर रिटेल स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स, और मैं उनसे बात करूंगी। मैंने 6 महीने उनसे बात करी है, एवरी स्टोर, एंड दे वर लाइक जो है वी नीड अ 3-year सेल्स हिस्ट्री टू कीप योर प्रोडक्ट हियर। तो वो तो मेरी लिस्ट से बिल्कुल ही चले गए। अब मुझे नहीं समझ आया कि नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, स्टिल आई नीड सम स्ट्रेटजी। मेरी टारगेट मार्केट वाज द होलसेलर्स, द रिटेल स्टोर्स। अब जब रिटेल स्टोर्स आपको मना करते हैं तो फिर होलसेलर्स रह जाते हैं, and how to find them in the new country, that was a bigger challenge for me. So I enrolled myself in a wholesale course. और फिर वो pandemic का टाइम जो कुछ नहीं हो रहा था, I enrolled myself in the wholesale course, and from there I found the links to some very amazing wholesale markets जहां मैं अपना सामान बेच सकती थी wholesalers को। मैंने वहां से भी लिंक बनाए, डेफिनेटली द शॉप ओनर्स वहां पे, देयर आर फ्यू मार्केट्स हियर एक्सेप्ट Amazon. Amazon एक अलग स्टोरी है, आई डिडंट वांट टू वर्क विद Amazon टू बी ऑनेस्ट। तो जब मैंने दूसरी मार्केट सर्च करी, देयर वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छी मार्केट्स हैं, और one of them is Fair Market. I don't know if anyone of you heard about it. One is Mabel, Abound. So these are the markets I was selling to. Hi, Summer, I cannot hear you. Hello. I guess my internet. Okay. जी, Now, अब आवाज आ रही है। okay. So I started selling on Fair Market. I got a link from the wholesale course. There were many people on there. मतलब बहुत सारे businesses बैठे हुए हैं, and they are all related to food items. I wanted to sell my food item, my salt. That is the black salt. I have 3 products edible, and rest of the products were lamps and bowls and different items. So वहां से मेरा business जो है वो फिर चढ़ना शुरू हुआ, because that was a strategy that I inculcated, and I was local store से हट के, because everything was closed in pandemic. तो मैं उसको फिलहाल के लिए छोड़ दिया था because of the pandemic, and I switched to online. और ऑनलाइन मार्केट्स पे वहां से हमने लिंक बनाए, और फिर उसके बाद वहां से मेरा जो कंटेनर है वो खाली होना शुरू हुआ। और फिर लोकल स्टोर्स जैसे जैसे खुलना शुरू हुए, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू देम। लोकल स्टोर्स, गिफ्ट स्टोर्स, ये मेरी फार्म्स की टारगेट मार्केट थी, होलसेलर्स। और सबसे बड़ी बात कि जो एक चीज थी कि अच्छा, why someone will choose my product, because मार्केट में ऑलरेडी हिमालयन सॉल्ट मौजूद है। तो मैंने तो लोगों को जाके वो चीज दी थी कि आप ट्राई करके देखें, मतलब मेरा जो सॉल्ट है वो ट्राई करें। आई डोंट नो, मेरे सॉल्ट में और दूसरे सॉल्ट में, जब मैंने 1 साल बैठ के हिमालयन सॉल्ट के सारे प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग की, तो ठीक है, देयर वर वेरी फ्यू, और वहां पे उनकी क्वालिटी अच्छी थी, बट जैसे ही मेरे सॉल्ट पे लोगों ने, दे ट्राइड इट लाइक ट्वाइस थ्राइस, बट द सॉल्ट, वो उसके बाद लॉयल क्लाइंट्स इसीलिए बन गए बिकॉज द सॉल्ट क्वालिटी वाज वेरी गुड। तो मार्केटिंग, अगर आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो पहली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यही होती है कि आपने लिंक्स बनाने, लोगों से मिलना है, कनेक्शंस। दैट इज, वो मेरे लिए बहुत काम आया। और मेरे हस्बैंड भी इस चैट में इस वक्त बैठे हुए हैं। ही वाज द वन हु वाज पुशिंग मी थ्रू आउट कि जी आप बाहर निकले और आप लोगों से लिंक्स बनाएं। मैं बहुत ज्यादा ऑन स्क्रीन वाली बंदी नहीं हूँ, मैं बैक स्क्रीन पे रह के काम करती हूँ, लेकिन जो है वो इस पर्पस के लिए, जस्ट टू सेल माय प्रोडक्ट इन द मार्केट टू द करेक्ट ऑडियंस, टू द करेक्ट पीपल, आई हैड टू डू दैट। कभी कभी हमें बिजनेस में, अपनी बिजनेस को रन करने के लिए हमें वो काम करने पड़ते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होते, बट वी हैड टू डू दैट, क्योंकि हमारा बिजनेस और हमारा वो सब उससे जुड़ा हुआ होता है, हमारा बिजनेस की सक्सेस उससे जुड़ी हुई होती है। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर रहे, सेल नहीं कर रहे, तो देयर इज नो यूज।
तो आप जिस भी बिजनेस में है, वेदर इट्स एन ऐप, वेदर इट्स कोई भी बिजनेस है, और अगर आप किसी भी बिजनेस के लेवल पर है, मुझे इस वक्त 4 साल हो चुके हैं, डेफिनेटली मैं थोड़ा सा स्टार्टअप उससे निकल आई हूँ। वैसे एक बात है, मैंने कभी अपने बिजनेस को आज तक स्टार्टअप नहीं बोला, मैंने हमेशा उसको बिजनेस बोला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टअप, एक मेरे जहन में हमेशा से ये रहा है कि स्टार्टअप जो है ना, वो स्टार्टअप वाली जो चीज है वो मुझे कभी समझ नहीं आई। तो मैं हमेशा से अपने बिजनेस को बिजनेस का है, और मैंने हमेशा से ये कहा है कि नहीं, मैंने इसको बंद नहीं करना, मैंने इसको चलाना है, चाहे वेदर वो पेंडेमिक हो, चाहे कुछ भी हो। बहुत सारे ऐसे फेज आए, आई वॉज हियर अलोन, मेरे हस्बैंड मेरे साथ इस वक्त यूएस में नहीं है, और मेरी फैमिली की तरफ से भी मुझे कोई खास सपोर्ट नहीं है, तो आई वॉज हैंडलिंग ऑल द बिजनेस अलोन। अब जो है, जो स्टार्टअप वाली जो चीज होती है, वो मुझे कभी वो नहीं, हाँ ठीक है आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बट मेरा जो है वो बिजनेस था, बिकॉज ऑलरेडी द थिंग वाज इन द मार्केट, बिजनेस इज कन्वेंशनल, और स्टार्टअप अगर आप कोई लेके चलते हैं तो दैट इज यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अब जैसे अवेज ने कहा, ही इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम जो ऑलरेडी लोग फेस कर रहे हैं स्कैम की सूरत में। आप बिजनेस करते हैं, देयर इज अगर आप लोग को, अगर आप में से कोई मुझे बता सके व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड द बिजनेस, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, अगर वो बताना चाहे उनमें से कि मुझे डिफरेंस। हेलो, Samar, I can hear you now. ओके, यू आर नॉट हियरिंग मी बिफोर। 2 सेकंड के लिए आवाज गई है बस। अच्छा, 2 सेकंड के लिए, because I asked a question if anyone is interested in telling me the difference between entrepreneurship and the business. यही पार्ट मिस हुआ था जी। स्टार्टअप फाउंडर्स प्लीज will answer this question. Okay, चले ठीक है, हम लेटर ऑन, आप जब क्वेश्चन आंसर्स का वो हो रहा होगा तब हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, कोई मसला नहीं है। Perfect. Samar, let's move forward जी। Okay, so जो मार्केट स्ट्रेटजी, पहली कनेक्शंस, okay, I made connections, I joined the organizations, I started meeting people, और जो है वो सारा बैक स्टेज वाला जो काम था वो सब मुझे फ्रंट में आके करना पड़ा, बिकॉज आई हैड नो चॉइस। और जो है कनेक्शन से मुझे एक के बाद एक कनेक्शंस मिलते गए, तो आपकी टारगेट ऑडियंस मेरी और डिफाइन होती गई। ओके ठीक है, होलसेलर्स हैं, ओके आई ट्राई, फिर मुझे ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे इंडिविजुअल्स के साथ भी कनेक्ट करना है, तो मैं इंडिविजुअल्स के साथ भी कनेक्ट करना चाहा। वो सिर्फ उस सूरत में हो सकता था जब मैं कोई स्टॉल लगाऊं, एग्जीबिशंस, थ्रू फार्मर्स मार्केट। So that was another sales channel for me, and that was another thing कि मैं human interaction कर सकती थी with the individuals, just to check कि मैं जो मार्केट में जाती थी तो I used to observe people, नमक के जगह पे Himalayan salt is there, but they are not buying the Himalayan salt, they are buying white salt or some other Amish salt. मुझे समझ नहीं आया कि if it's in demand, if it's there, why they are not buying? तो मेरी प्रोडक्ट को ये इंडिविजुअल कैसे लेगा? तो I asked few people and they were like कि हम इसीलिए नहीं इसको खरीदते because we don't know कि इसकी क्वालिटीज क्या है, जबकि इंटरनेट इज फुल ऑफ द क्वालिटीज ऑफ हिमालयन सॉल्ट। बट स्टिल आज तक लोग मुझसे पूछते हैं इसमें सॉल्ट की खुशबू क्यों नहीं आती, ये ब्लैक सॉल्ट पिंक क्यों नहीं है when it's coming from the same mine? मेरी प्रोडक्ट डिफरेंट नहीं थी, but I was there to answer all their queries, to satisfy them. That is the reason they connect with me and they started buying me. Individual people also started buying from me. Wholesalers अलग थे, local stores were different, और individuals जो farmers market या मुझसे वेबसाइट के थ्रू या उसके थ्रू और उसमें एग्जीबिशंस के थ्रू मिले, वो चीज जो है वो एक नॉर्मल इंसान, अगर आपने किसी कंपनी ने उठा के हिमालयन सॉल्ट रख दिया है,
लोगों को नहीं पता, उनको ये नहीं पता ग्रेडिंग क्या होती है हिमालयन सॉल्ट की, वो कौन कौन से लेयर से निकाला जाता है, अगर वो 6 लेयर से निकाला जा रहा है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा, आपको ज्यादा फाइन मिलेगा, रिफाइन मिलेगा। तो इंडिविजुअली मैं उस तरह से कनेक्ट कर पाई। सो मेरे लिए और मार्केटिंग और सेल्स चैनल्स खुल गए, मेरी टारगेट ऑडियंस बड़ी होती गई, क्योंकि मैंने तजुर्बे किए कि भाई और किस तरीके से मैं अपनी प्रोडक्ट को बेच सकती हूँ। देयर आर अदर वेज, कौन कौन से तरीके और निकल सकते हैं। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे जितने स्टार्टअप्स या जितने लोग बैठे हुए हैं जो इस वक्त जिनको 4 साल हो चुके हैं, या आपने एक्सपेंड करनी है अपनी प्रोडक्ट लाइन, या आपने गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है, कि इधर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, नई ऐप लॉन्च कर रहे हैं, या इधर आप एग्जिस्टिंग उसके अंदर किसी को लेकर अपनी प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हैं एग्जिस्टिंग मार्केट में, आपके पास कोई एक प्रोडक्ट लाइन है, यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ सेकंड प्रोडक्ट लाइन, या फिर जो है आप उसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। आपकी मार्केट रिसर्च कितनी है, आपने कितनी ज्यादा पर्सोना, मैंने इतना, आपका पर्सोना जो बनता है उसका कस्टमर प्रोफाइल या आपका जो उसका पर्सोना आप बनाते हैं, तो लाइक आई आस्क्ड वन पर्सन, जो उन्होंने मुझसे सॉल्ट लिया, आई आस्क्ड हिम व्हाई डिड यू, आपने क्यों मेरा सॉल्ट परचेज किया है? तो उन्होंने कहा कि भाई आपके सॉल्ट का जब मैं कुकीज बनाता हूँ, ही वाज अ शेफ, ही वाज 40 years old, तो मैं डेमोग्राफिक्स भी देख रही थी कि कौन कौन खरीद रहा है और क्यों खरीद रहा है। सो आई आस्क्ड हिम क्यों खरीदा आपने, एंड ही वाज लाइक कि जब मैं आपके हिमालयन सॉल्ट से कुकीज बनाता हूँ तो उसमें एक बिटर टेस्ट नहीं आता। बोलते हैं मैं पहले तजुर्बा कर चुका हूँ डिफरेंट हिमालयन सॉल्ट से कुकीज बनाने का, लेकिन उसके अंदर एक बिटर टेस्ट आता है। तो मैंने अपनी टारगेट ऑडियंस को बहुत इस लेवल पर भी जाके कैटेगराइज किया कि मैं किस तरीके से उन्हें क्या कर सकती हूँ। एंड देन द नेक्स्ट इज ओके फाइन, आई डिड द कोलैबोरेशंस एज वेल, जो आप कर सकते हैं। मेरी कोलैबोरेशन ये थी कि मेरे नमक से बहुत सारी चीजें बन सकती थी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। सो आई कोलैबोरेटेड with the person who was in the market and was making beauty products. So I asked her to make some scrubs from the Himalayan salt. She was really interested and we had a very great collaboration. और बहुत ही अच्छा चला. So this is another way you can do that. यहाँ पर मैं जितने avenues, जितनी marketing strategies अपना सकती थी, मैंने सब किया. जितनी मैं रिसर्च कर सकती थी, कौन क्या खरीद रहा है, क्यों सॉल्ट नहीं ले रहे और कौन सा सॉल्ट ले रहे हैं, मुझे ये नहीं पता था कि इतने हिमालयन सॉल्ट की मार्केट में मेरा सॉल्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा। मैं एक टाइम पे हिम्मत हार चुकी थी कि मेरा सॉल्ट नहीं बिकेगा, बट देन नाउ इट्स गोइंग, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स डूइंग वेल। मेरी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी जा रही हैं, इवन लोगों की डिमांड पर अब पहले से ही मैं ऑर्डर बुक करके वहां से कंटेनर मंगाती हूँ। द ऑर्डर्स आर ऑल प्री बुक्ड। लेकिन इसके लिए जो है वो 4 साल की पूरी स्ट्रगल है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो मैंने गो टू मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनी हर लेवल पे चेंज किया है, बिकॉज यू डोंट नो, बिजनेस में कोई प्रूवन थ्योरी नहीं है। आपको नहीं पता कौन सी स्ट्रेटजी आपके बिजनेस पे काम करेगी और कौन सी नहीं करेगी। हो सकता है आपके बिजनेस पे कोई कर रही हो वो मेरे पास काम ना करे, जो मेरे पे कर रही हो वो आपके पास काम ना करे। और ये स्ट्रेटजीज आप उसी वक्त बना सकते हैं जब आप अपने क्लाइंट का, अपनी टारगेट ऑडियंस का पर्सोना जो है उसको डिफाइन करें और कैटेगराइज करें। हर बंदा अलग अलग तरीके से आपकी प्रोडक्ट को लेता है और अलग अलग तरीके से आपकी प्रोडक्ट को परसीव करता है। अभी इस वक्त मेरे पास 26 प्रोडक्ट्स हैं एंड नाउ आई एम ऑन टू इंट्रोड्यूसिंग अनदर लाइन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। वो मुझे नहीं पता कि उस पर मेरी स्ट्रेटजी ये वाली काम करेगी सॉल्ट की या नहीं करेगी, बिकॉज दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट। दैट इज अ बैग। यहाँ पे ग्रोसरी बैग्स, थैलियां बंद हो चुकी हैं और ग्रोसरी बैग्स आपने अपने घर से लेके जाने। तो मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज द ग्रोसरी बैग। 2 मार्केट में बहुत ज्यादा है, बट सिंस इट्स अ फैब्रिक, इट्स रीयूजेबल, इट कैन बी यूज्ड एज अ ग्रोसरी बैग, इट कैन बी यूज्ड एज अ शॉपिंग बैग, पर्स के तौर पे यूज हो सकता है, हैंडबैग के तौर पे यूज हो सकता है, बट इसकी कंप्लीटली एक डिफरेंट मार्केट है। और अभी उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी आई एम इन दी
प्रोसेस उसको बनाने के लिए कि मेरी इसकी गो टू स्ट्रेटजी क्या होगी नेक्स्ट, और मुझे टारगेट ऑडियंस क्या लेकर आनी है. लेकिन सिंस पीपल नो फार्म्स नाउ, वो जानते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हम कभी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. मैंने बहुत आउट ऑफ द वे जाके अगर कभी चीज टूटी भी मिल जाए क्लाइंट को, डेफिनेटली इट्स अ हेवी प्रोडक्ट. अगर एक लैम्प है, इट्स लाइक अ 30 पाउंड लैम्प, मैंने वो भी कोरियर किया है. इट कॉस्ट मी लाइक $100 टू कोरियर दैट, लेकिन आई डिड दैट जस्ट बिकॉज टू मेंटेन द क्लाइंट. तो अब मुझे ये पता है कि इट्स नॉट, माय प्रोडक्ट्स आर नॉट ओनली गोइंग इन यूएस, दे आर आल्सो गोइंग इन लाइक स्विट्जरलैंड, इटली एंड ऑल थ्रू आउट यूरोप. इवन वन ऑफ माय क्लाइंट फ्रॉम स्विट्जरलैंड, मैंने उनको बता दिया कि हमारे लैम्प्स के अंदर, जस्ट बी ऑनेस्ट, द थर्ड थिंग इज जस्ट बी ऑनेस्ट विद योर ऑडियंस. मैंने उनको बता दिया कि जी इसके अंदर अमेरिकन वॉट्स की बल्ब जाता है, आपके यूरोपियन उसका नहीं है. वो स्टिल ही सेज इट डजंट मैटर, आई विल चेंज द बल्ब्स, आई विल चेंज द कोड, just send me the whatever you have. तो जब मैं पाकिस्तान में थी तो उसकी स्ट्रेटजीज वर टोटली डिफरेंट, लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, पेड एड्स, ई कॉमर्स वेबसाइट थी हमारी फार्म्स की जिसपे हम मल्टीपल नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेचते थे, एसईओ, वर्ड ऑफ माउथ, लोकल स्टोर्स पे तो बहुत बाद में पहुंचे थे. तो वो एक हमारा सेल्स चैनल था जो मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं काम किया. दैट वाज अ टोटली डिफरेंट रीजन, टोटली डिफरेंट थिंग. तो यहाँ का कंज्यूमर इज डिफरेंट, यहाँ की मार्केट इज डिफरेंट, इट्स अ वास्ट मार्केट. मैं तो सिर्फ न्यू जर्सी तक थी, बट मैं न्यू जर्सी में होती हूँ, तो मुझे यहाँ के लोकल स्टोर्स और मुझे नहीं समझ आई कि जो है वो मैं न्यू जर्सी से बाहर कैसे निकलूं. बट थ्रू कनेक्शंस एंड थ्रू लिंक्स एंड थ्रू द कोर्सेज आई एनरोल माई सेल्फ इन, मुझे वो लिंक्स मिले एंड देन नाउ इट्स लाइक ऑल ओवर यूएस मेरी प्रोडक्ट्स जाती हैं. मेरी डेमोग्राफिक्स अगर मैं देखूं तो मेरी सॉल्ट प्रोडक्ट्स जो लैम्प्स वगैरह हैं, they especially go to some Midwest or South California or Midwest Missouri और इस जगह पे ज़्यादा जाती है. And I'm still traveling inside US. Like I traveled to Missouri last week and I'm going to California next week for the meetings. तो product quality, target audience का persona आपने define करना है. आपको नहीं पता कौन सी strategy काम करेगी, even at whatever stage you are in your business. हम बहुत सारी strategies, marketing plans पढ़ते हैं, हम बनाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ काम नहीं करता. तो आपने जो है वो अपना दिमाग खुला रखना है और अपनी ऑडियंस को जानना है एंड अपने आप को जानना है कि यू रियली वांट टू डू दिस थिंग. अगर आप बहुत पैशनेट हैं और करना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि आपका स्टार्टअप या आपका बिजनेस किसी भी लेवल पे फेल हो या बैठ जाए, तो आप ये चीज बिल्कुल करेंगे कि आपकी टारगेट ऑडियंस इतनी डिफाइंड हो कि आपको ये पता हो कि आपने किस लेवल पे कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी उनके साथ लेकर चलनी है. आप इंटरनेशनल मार्केट्स को रीच कर सकते हैं थ्रू कोलैबोरेशंस. इफ एनी ऑफ यू नीड माय हेल्प इन रीचिंग एनी और डूइंग एनी कोलैबोरेशंस इन यूएस, तो आप मुझे इंडिविजुअली लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं और मुझसे इंडिविजुअली भी बात कर सकते हैं. आई विल बी इन पाकिस्तान at the end of October, inshallah. तो हम बात कर सकते हैं because I am open to all the suggestions, all your questions, and अगर मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ इस लेवल पे या किसी भी लेवल पे in US, तो definitely I'll do that. अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज. हेलो. जी समर, I can hear you. Founders, आपके पास कोई सवाल है? जी वकास. जी एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो अपने पिंक सॉल्ट की स्टोरी पूरी बताई, उसके अंदर आपने बताया ना स्टार्टिंग आपने पहले अपने जो है वो कस्टमर्स को बनाया थ्रू लिंक्स, राइट? अभी जो आपकी न्यू अभी जो आपने बैग अप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सेम स्ट्रेटजी आप इसमें भी अप्लाई कर रहे हैं? फर्स्ट आप कस्टमर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, देन जो है फिर आप मार्केटिंग करेंगे? क्योंकि मेरी जैसे मैंने अपना पिंक सॉल्ट का मेरा ऑडियंस डिफाइन थी, मुझे पहले इंडिविजुअल्स को कनेक्ट नहीं करना था. मुझे मेरी एक टारगेट ऑडियंस मैंने डिफाइन कर ली थी कि मेरी मार्केट सॉल्ट की द रिटेल स्टोर्स एंड द होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स. मुझे इंडिविजुअल लेवल पे नहीं बेचना था वन पैकेट, बिकॉज मेरे पास कोई फिजिकल स्टोर नहीं था उस वक्त.
तो लेकिन लेटर ऑन जब काम बढ़ने लगा और सब चीज होने लगी, तो फिर इसके बाद आई टर्न टुवर्ड्स द फार्मर्स मार्केट एंड द एग्जीबिशंस टू कनेक्ट विद पीपल ऑन इंडिविजुअल लेवल। उस पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बिकॉज बहुत से लोग, उनके दिमाग में बहुत कुछ था हिमालयन सॉल्ट और उसकी प्रोडक्ट्स को लेके। अभी भी इफ समवन वांट्स टू परचेज द लैम्प फ्रॉम मी, मैं उनको कहती हूँ अगर आपके घर में पेट्स हैं तो आप इनको पेट से दूर रखें। उन्हें ये चीज नहीं पता होती, और बहुत सारे लोग, उनके पेट्स बीमार हो गए बिकॉज पेट्स के पास अगर आप हिमालयन सॉल्ट रख दें तो वो लिक करते हैं उसको बहुत ज्यादा, और फिर वो बीमार हो जाते हैं। तो यू हैव टू टेल देम। तो मैंने उनकी जब इस तरह की चीजें उनको बताना शुरू करी, तो आपका एक कनेक्शन खुद ही बिल्ड होता है, लोगों का एक ट्रस्ट आपके ऊपर आता है, एंड देन पीपल स्टार्टेड बाइंग फ्रॉम यू। तो इसी वजह से फिर मैंने इंडिविजुअल लेवल पे लोगों से कनेक्ट करना शुरू किया। और अगर मैं बैग्स भी बेचूंगी तो वो लोग मुझे जानते हैं, दे विल डेफिनेटली बाय माय बैग्स। वो अपने क्लाइंट्स को गिफ्ट देने के लिए भी वो बैग्स यूज कर सकते हैं, उसके अंदर लैम्प्स डाल के या वो करके। लेकिन मुझे और उसको अगर एक्सपैंड करना है, देन आई नीड टू टच द ग्रोसरी स्टोर्स। लेकिन ग्रोसरी स्टोर्स में इसीलिए नहीं जाऊंगी बिकॉज दे आर क्रिएटिंग देयर ओन बैग्स। दैट्स व्हाई मेरी गो टू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और मेरा जो क्लाइंट पर्सोना होगा वो डिफरेंट होगा दिस टाइम। मैं इंडिविजुअल लेवल पे अब सेल करूंगी और उन क्लाइंट्स को सेल करूंगी जो ऑलरेडी मेरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं थ्रू फॉर देयर शॉप्स। तो आप अपने टारगेट ऑडियंस से कनेक्ट करना है। मैं तो जाती थी लोगों के पास, मैं उधर स्टोर्स पे भी जाती थी, यहाँ पे लोकल ग्रोसरी स्टोर्स पे मैं उनको सॉल्ट के डब्बे देती थी, खुद उठा के जा रही थी, मेरे पास कोई भी नहीं था। मतलब सॉल्ट के डब्बे आर नॉट लाइट वेट, तो अच्छे खासे वो हेवी होते हैं और मैं उठा के अंदर लेके जाती थी। आई यूज्ड टू चैट विद देम, अच्छा कौन आता है इधर, आपकी मार्केट में किस तरह के लोग आते हैं, वो क्या लेते हैं, हिमालयन सॉल्ट लेते हैं नहीं लेते हैं। बिकॉज एक चीज बहुत शॉकिंग थी मेरे लिए, मैं देसी स्टोर्स पे गई, सो वन ऑफ देम टोल्ड मी कि आप गलत मार्केट में आई हैं, 13 kg का एक डब्बा है, मैं उठा के अंदर गई हूँ, एंड ही सेड आप गलत मार्केट में आई है, देसी नमक नहीं खरीदते। आई वाज लाइक ओके फाइन, कौन ये नमक खरीदता है आप मुझे ये बताएं, गोरे लोग ये नमक खरीदते हैं। आई वाज लाइक ओके फाइन। तो फिर मैं गोरा मार्केट में गई, आई अप्रोच देम। यहाँ पे एक मेरे घर के पास एक मॉल था, उसमें ऊपर एक कोवर्किंग स्पेस थी। तो जो स्पेस, उस कोवर्किंग स्पेस में और इंक्यूबेटर में जितने स्टार्टअप्स होते थे वो सब अपनी प्रोडक्ट्स एक जगह पे रखते थे। वो एक शॉप उन्होंने ली हुई थी, मैंने वहां पे जो है उधर अपना सॉल्ट रखवाया, और वहां पे जितना सॉल्ट मेरा बिका है उस एक शॉप पे उतना शायद किसी देसी स्टोर पे नहीं बिका हो। ये अब जाके देसी स्टोर्स में आने लगा है, लेकिन जो है वो देसी इस सॉल्ट को नहीं लेते, मुझे नहीं पता क्यों। लेकिन ये एक मेरे लिए भी शॉकिंग बात थी जब उसमें मुझे ये सुनने को मिला कि आप गलत मार्केट में आई, आप गलत लोगों को सेल करें। तो मैं इतने लोगों से मिली कि मुझे सामने से ये भी सुनने को मिलता था कि जी आप गलत मार्केट में आ गई हैं, आप गलत चीजें, आप गलत जगह पे गलत चीज बेच रही हैं। तो आपने ऑल द टाइम यू हैव टू बी कनेक्टेड, यू हैव टू मीट पीपल। आप लिंक्स और कनेक्शंस जब तक आपको टारगेट ऑडियंस का अंदाजा ही नहीं होगा, जब तक आप लोगों से नहीं मिलेंगे। हम एक ऑफिस में बैठ जाएं या कोवर्किंग स्पेस में बैठ जाएं या इंटरनेट पे बैठ के पूरा दिन गुजार दें, आपका बिजनेस जो है वो आई डोंट नो कहाँ पे जाएगा, या किसी का चलता है नहीं चलता आई डोंट नो, लेकिन मेरे लिए वो चीज वर्क नहीं करी कभी भी। मुझे ये चीज पहले समझ नहीं आती थी, लेकिन जो है मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है वो काफी पुश कर कि नहीं दिस विल वर्क, यही काम करेगा। लेकिन वो बात अब मुझे समझ आती है कि वाकई दिस विल वर्क, बिकॉज उसके बगैर मेरी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बिकती। अब ये मैं कह सकती हूँ कि ओके फाइन, अब मेरी एक प्रोडक्ट की पूरी मार्केट बन चुकी है, आई कैन सेल ऑनलाइन। लेकिन हाँ, जब मुझे कोई दूसरी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करानी है तो उसके लिए मुझे फिर उतनी ही स्ट्रगल करनी है, बिकॉज मुझे नहीं पता कि उसके ऊपर कौन सी गो टू स्ट्रेटजी काम करेगी। आप लोग में से किसी ने कोई गो टू स्ट्रेटजी अगर कोई बनाई है इस लेवल पे तो दे कैन ऑलवेज शेयर। मुझे अच्छा लगेगा अगर वो इंटरैक्टिव होगा, मुझे पता चलेगा आप लोगों ने क्या गो टू स्ट्रेटजी बनाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल शेयर करता, लेकिन मैं प्रोडक्ट के हवाले से नहीं, मेरी तो एक सर्विस है। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। मैं उसको आपके इसमें इंटरप्शन कैसे करूं?
मतलब नहीं, तो हमने आपकी क्या सर्विस है, आप बता सकते हैं? प्रोडक्ट हो सर्विस हो, आपका काम तो काम है। ई कॉमर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है नियर बाय पिकअप सॉल्यूशन। आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे? ई कॉमर्स के लिए प्लेटफॉर्म हमने बनाया है जो नियर बाय पिकअप सॉल्यूशन दे रहा है पाकिस्तान में। नियर बाय पिकअप सोल्यूशन। हम्म। हाँ, ये तो उस तरह आपको तो का पता नहीं है होगा, जो आप यूएस से पाकिस्तान में अभी। अमेजोन की जो नियर बाय पिकअप लोकेशंस होती हैं, आप उस तरह की प्लेटफॉर्म की बात जी कर रहे जी हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे यूएई में फुडल है और डूडल है आपकी तरफ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है वो वहां पे काम करेगा, नियर बाय पिकअप लोकेशंस? मैं ऑलरेडी 4 क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ इस वक्त। और आपको कितना टाइम हुआ इसको करते हुए? 6 महीने हुए स्टार्ट किए। दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो आपने उसकी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई ऑफ दिस सर्विस? हमने रेप्लिकेट किया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के स्किल वो उसको सिस्टम को, और टाइमली अल्लाह का शुक्र है सब चीजें करते रहे। जब गो तो टू आप जब मार्केट। क्लाइंट बनाते हैं तो आप क्लाइंट के पास क्या बोल के जाते हैं? आप इंडिविजुअल क्लाइंट्स बना रहे हैं या आप कोई किसी और टारगेट मार्केट को वो कर रहे हैं कैप्चर? नहीं, इंडिविजुअली है, मतलब जो वेबसाइट ई कॉमर्स सेलर हैं उनको हम्म। B2B डील करते हैं। फिर B2C एक्सपीरियंस दूसरी चीज है। B2C है जब कस्टमर हमें सेलेक्ट करे डोर स्टेप डिलीवरी के अलावा। ओके। तो हाँ, पाकिस्तान में तो तो स्कैम इतने हैं, ये कैसे चलेगा आपको लगता है? मेरे पास तो प्लान है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सारे पिकअप पॉइंट जो है वो इंश्योर्ड हैं, जहां तक सिक्योरिटी हो सकती है। सब यही कहते हैं कि कैसे चलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, हम चला रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है, वही जो आप अभी इससे पहले बात कर रही थी। मैं भी हम्म। लोगों से मिलता हूँ, बहुत मिला हूँ, और मैंने मार्केट से ही सीखा सब कुछ। मैं कहीं से इंक्यूबेटेड नहीं हूँ, सेल्फ इंक्यूबेटेड हूँ। सेल्फ इंक्यूबेटेड है। नहीं, जी, मार्केट से और डेफिनेटली लोगों से मिलके आप बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल, क्योंकि मैं भी कहीं मैंने इंक्यूबेशन नहीं की है। हाँ, एनआईसी Startup को is मैं not a fancy thing. Startup is not a fancy thing. बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली बिजनेस करना एक इवन आप एज एन एंटरप्रेन्योर, इट्स नॉट एन इजी थिंग। आपको कदम कदम पे जो है ना, आप, मैं तो ये बोलूंगी कि वो जो वर्ड है लोहे के चने चबाना, दैट्स द सेम थिंग जो आपको इसमें होती है। क्योंकि नहीं, आप तो फिर भी मैं तो थोड़ा और कॉन्शियस हूँ। आप एंटरप्रेन्योर यूज करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता इस वर्ड को यूज, क्योंकि एंटरप्रेन्योर आसान चीज नहीं होती, वो बना नहीं जा सकता। वो तो होता है इंसान। अभी तो अच्छा, पाकिस्तान में हम रेप्लिकेट ही करते रहेंगे 8-10 साल तक। तो इसमें आपने कोई देसी टच दिया है या आप लोगों को किस तरह से अप्रोच करते हैं? पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाया है, या मार्केट के हिसाब से बनाया है, और वहाँ की तरह का नहीं है। वहाँ पिकअप पॉइंट सारे फ्रेंचाइज लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल। हमने लोकल शॉप्स को लिया है, ठीक है, और आपने उनसे अच्छा, जो हर एरिया में लोकल शॉप्स होती हैं। जी जी जी, और उनसे एक रिटर्न एग्रीमेंट किया है, ठीक है। और फिर हम्म। पॉइंट्स की बेस पे हमने ई कॉमर्स को बोला कि ये हमारे पिकअप पॉइंट्स हैं, हम आपको डिलीवरी सॉल्यूशन दे रहे हैं जो कि कोरियर से सस्ता है, और इसमें कस्टमर के पास लेवरेज है पिकअप करने की, क्योंकि वो तो राइडर की तरह सर्विस नहीं होगी। बिकॉज राइडर में तो काफी स्कैम होता है, अब ये पिकअप में राइडर में लेस। स्कैम होता है ना। अब पिकअप जी। पॉइंट और राइडर की क्रेडिबिलिटी में बहुत डिफरेंस है। पिकअप हम्म। पॉइंट की एक रेपो होती है, तो रेपुटेड लोगों से हमने कॉन्ट्रैक्ट किए ना, मर्चेंट एग्रीमेंट। ओके, सही सही। तो आपका कोई इरादा है कभी कोई यूएस में कोई काम करने का या इस तरह की चीज करने का? यूएस में ऑलरेडी है, डेफिनेटली है, यूएस में लेकिन तो इट्स ऑलरेडी है, बिल्कुल यूएस में तो ऑलरेडी है, पूरी दुनिया में है, यहाँ नहीं है। पहले तो यही करेंगे। इसके अलावा हमारा प्लान है, एक मार्केट प्लेस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और उससे हम यूएई की मार्केट कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, ओके, इंशाल्लाह। ओके, एनी अदर पर्सन जो कोई और बताना चाहेगा अपनी स्ट्रेटेजी? किसी ने अभी इनिशियल लेवल पे कोई स्ट्रेटेजी की हो? अवेश, कैन यू अगर आपने कोई की है तो प्लीज आप बताना चाहेंगे? जी श्योर समर। हम लोगों ने जो कपड़ापुर का जो एक्चुअली, क्योंकि हम लोगों ने एम्पावर करना था नॉट जस्ट बिजनेसेस या रिटेलर्स को, हम लोगों ने सोशल सेलर्स को भी हम लोगों ने एम्पावर करना था। सो इन ऑर्डर टू डिजाइन द स्ट्रैटेजी, हम लोगों ने 2 अप्रोचेस फॉलो की। तो फर्स्ट अप्रोच वाज टू हैव ऑन साइट सर्विस,
जो कि हम लोगों ने कुर्तबा मार्केट, तारिक रोड की मार्केट, उसके बाद क्लिफ्टन, जहाँ जहाँ पूरे कराची के अंदर जिन जोन्स के अंदर जो मेजर कपड़ों की मार्केट थी, हमने वहां पे जाके विजिट किया एंड वी ट्राई टू डिटरमाइन के जो बिजनेसेस हैं व्हेन दे इंटरैक्ट फ्रॉम बी टू बी पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो लोग अपनी इन्वेंट्री कब कब एक्वायर करते हैं, उसका उसका वॉल्यूम कितना होता है और वो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, एंड उनके पास जो नॉर्मली सेल्स हो रही होती है वो कितने ब्रैकेट की हो रही होती है। लाइक उनके पास जो एवरेज सेलर होता है वो 2,000 रुपये स्पेंड कर रहे हैं या उनके पास वो 6,000 रुपये स्पेंड कर रहे हैं। तो दैट हेल्प्ड अस टू शेप आवर एप्लीकेशन इन अ वे कि व्हेन वी गो टू द मार्केट, तो हम लोग वो सारे फीचर्स, हम वो सारी कैपेबिलिटीज या हम वो सारी आई वुड से फीचर्स ऑफर कर सकें बिजनेसेस को, कि सो दैट उनके लिए हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आना उनको फीजिबल लगे, उनको बेनिफिशियल लगे, उनको ये ना लगे कि इट्स जस्ट एड ऑन दैट आई एम डूइंग एंड इट्स नॉट गिविंग मी एनी वैल्यू। उसके बाद हम लोगों ने सेम अप्लाइज ऑन द सोशल सेलर जो फेसबुक के ऊपर होते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर होते हैं। वी आल्सो कंडक्टेड अ सर्वे फ्रॉम द कंज्यूमर्स एज वेल, एंड मोस्ट सरप्राइजिंगली जो हम लोगों ने डिटरमाइन किया कि मिनिमम ऑन एवरेज 40,000 का स्कैम हो रहा है डेली बेसिस के ऊपर इन पाकिस्तान इन द नेम ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। सो उसको फिर हम लोगों ने वो टैकल करने के लिए हम लोगों ने शेप किया अपने क्यूए के फीचर को, एंड दैट्स हाउ वी, क्योंकि अभी भी जो हमारी वो स्ट्रैटेजी है और हमारी जो मार्केटिंग कैंपेन है वो इसी बेस के ऊपर डिजाइन है कि दैट वी आर ट्राइंग टू हाईलाइट द पेन पॉइंट्स which exist in the market and emphasize and making consumer realize that they can keep themselves safe from the scams or by losing their money if they use our platform. And जो businesses हैं या sellers हैं या retailers हैं, उनके लिए हम emphasize कर रहे हैं, हम लोग उनको aware कर रहे हैं कि if they use the Kaprapur platform, what benefits they will get in terms of order tracking, जो delivery का hassle है वो उससे बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे, पैकेजिंग की उनको परेशानी नहीं होगी, एंड एक स्टैंडर्ड मेंटेन होगा, सो दैट a consumer would feel more comfortable buying from them instead of remain in a fix के shall I buy it or not buy it because I don't know if मेरे साथ scam होगा या नहीं होगा. So that's the strategy that we have made, and since day one, and it's actually number backed, क्योंकि हम लोगों ने वो सर्वेस किए थे सारी मार्केट्स के, हम लोगों ने कंज्यूमर के साथ भी सर्वेस किए थे, हम लोगों ने सोशल सेलर्स के साथ भी किए थे, तो दैट एक्चुअली हेल्प्ड अस अ लॉट टू ड्राइव द स्ट्रेटजी बिकॉज नाउ वी नो वेयर वी नीड टू हिट, and that's actually also helped us to lead us to our upcoming program, which we are bringing on board the partners. They are the sellers and they are the buyer, but they're also becoming our partners as well, because they will help us in improving the application or the features or anything that is we haven't covered yet in the application, so they will help us with that as well. That's great. जरूर आपसे हम पाकिस्तान में भी मिलेंगे बिल्कुल, NIC में इंशाल्लाह. Yep, sure. Looking forward to it. Definitely. Okay. तो जो है वो गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी और कुछ भी नहीं होती है, आपने बस अपने ऑडियंस को जानना होता है आपकी प्रोडक्ट आप क्यों लेकर आए मार्केट में, आप उसको बेचेंगे कैसे, आप आपका वाई क्या है, वही एक जो हमारा सवाल ना एक एंटरप्रेन्योर्स के दिमाग में ना बचपन से डाला जाता है, वाई क्या है, हाउ क्या है, वेयर क्या है, व्हेन क्या है, मतलब आपका प्लान क्या है. तो दैट इज एक्चुअली द थिंग कि आप वो चीजें इधर कैसे आप लेकर आएंगे, आप कैसे बेचेंगे, आपको जो है क्यों बेचना है. आप कोई एंटरप्रेन्योर एक मसला सॉल्व करता है, आप क्या मसला सॉल्व कर रहे हैं लोगों का. अगर तो आप मसला सॉल्व कर रहे हैं कोई लोगों का और आपके पास एक प्रोडक्ट भी है जो मसला सॉल्व करिए, तो डेफिनेटली इट्स अ हिट. अगर आप कोई मसला सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो भी ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो कोई मसला सॉल्व नहीं कर रही हैं, बट स्टिल दैट इज कॉल्ड द कन्वेंशनल बिजनेस. डेफिनेटली कोई रेप्लिकेट बिजनेस है, कोई कन्वेंशनल बिजनेस है. अब जब पाकिस्तान में मैं थी, डेफिनेटली हमने जब ऑर्गेनिक फ्लावर इंट्रोड्यूस किया, अब मुझे खुद नहीं पता था कि ऑर्गेनिक फ्लावर जो है वो रोटी उसकी जो है बनेगी तो कैसे बनेगी. एक नॉर्मल आटे की रोटी बहुत अच्छी फुल्का उस तरह की बन जाती है, लेकिन जब मैंने खुद ऑर्गेनिक फ्लावर ट्राई किया तो जब रोटी बनाई तो इट वाज नॉट दैट सॉफ्ट. तो डेफिनेटली मुझे ये पता था कि जब मार्केट में ये जाएगा या कोई बंदी मुझसे ले रही है और उसके घर में जो है वो ये खाया जा रहा है सॉफ्ट रोटी, तो नॉट एवरीवन इज गोइंग टू ईट दैट हार्ड रोटी.
तो मुझे कुछ ना कुछ उसको सोल्यूशन देना है निकाल के कि जी आप इसके अंदर ये डालें या ये डालें। तो मैं जब तक ट्राई नहीं करती कोई चीज, मैं कैसे बताऊंगी? तो एक मेरा ये भी है कि मैं अपनी चीजें, अपनी प्रोडक्ट्स पहले खुद ट्राई करती हूँ थ्रू डिफरेंट तरीकों से, एंड देन ताकि मेरे पास जवाब हो लोगों की क्वेरीज का देने के लिए, मैं उनको बता सकूं। और अक्सर ऐसा होता है कि आप अगर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं या उसे कोई चीज गाइड कर देते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में, वो आपके लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स बन जाते हैं। अब मुझे मेरी प्रोडक्ट ये वाली लोग लेते हैं। अब जो हिमालयन सॉल्ट की प्रोडक्ट्स हैं उसमें मेरे पास एक जार है दैट कैन बी यूज्ड एज अ स्पाइस जार, लेकिन मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि हम इसमें कैंडल मेकिंग कर सकते हैं। तो आई सेंड देम, जिसको जो इंटरेस्टेड होता है मैं उसको एक कॉम्प्लीमेंट्री जार भेजती हूँ जस्ट टू, और फिर उनको कहती हूँ कि अगर आप कैंडल बना लें जस्ट सेंड मी द पिक्चर कि उसका तजुर्बा कैसा रहा, बिकॉज मैंने वो चीज नहीं की होती है, बट जो है आप कर लें ताकि मुझे पता चल सके कि भाई वो हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो लोग आपको फिर आइडिया भी देते हैं। लाइक वन ऑफ मेरा एक हिमालयन सॉल्ट का कैंडल होल्डर है, उसके वो स्क्वायर शेप में है, दैट इज अ क्यूब, और उसके अंदर बीच में जो है वो एक उसको डालने के लिए जो है वो राउंड एक स्फेयर बना हुआ है, बट दैट इज डीप। तो मुझे एक ईमेल आई कि जो है वो हम ये ले सकते हैं, वी वांट टू यूज इट एज अ पेंसिल होल्डर। आप बिल्कुल लें। और फिर वो मुझे पिक्चर्स भेजते हैं और वो मुझे बताते हैं कि जी हमने उसको इस तरह यूज किया। दैट इज हाउ आई कनेक्ट विद पीपल, आई कनेक्ट विद माई क्लाइंट्स। और वो मुझे बिला झिझक मुझे फोन करते हैं जब माल नहीं पहुंच रहा होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, जस्ट कॉल मी, और उनको पता है कि यहाँ से इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपने कनेक्टिविटी अपने बिजनेस की लेकर आनी है, आपने क्लाइंट्स को इस मतलब इस तरह से वो करना है कि आप वो आपसे पीछे ना हटे, आपको छोड़ के ना जाए। दैट्स माय मेन मोटो कि क्लाइंट मुझे छोड़ के ना जाए। उसके लिए जो है वो मैं उनको जिस हद तक कर सकती हूँ सेटिस्फाइड, आई डू दैट। तो इंटरेक्शन और सेटिस्फाइंग ये चीज मेरी, कस्टमर फीडबैक, उनसे बार बार पूछना अच्छा जी प्रोडक्ट कोई टूटी हुई तो नहीं पहुंची, कोई ऐसी तो नहीं पहुंची। पाकिस्तान में बेसिकली मैंने ये चीज नहीं देखी। मैं इतना ऑर्डर करती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग से या किसी से भी, कभी मैंने बहुत रेयर ऐसे केसेस में देखा है जिन्होंने मुझे फॉलो अप करके पूछा हो जी प्रोडक्ट आपके पास पहुंच गई, कैसे पहुंची, आपको सही समझ आई है, नहीं समझ आई, या आपने रिटर्न करनी है या आपने रिफंड करना है, आपके क्या ओपिनियन है उसके बारे में। ऐसी कोई चीज मुझे पाकिस्तान में किसी बिजनेस ने आज तक इतनी ऑर्डरिंग में कुछ नहीं मिला मुझे, एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 केसेस। बट ये चीज मुझे यहाँ पे दिखती है, दे फॉलो अप, यहाँ के बिजनेसेस इस लेवल पे दे फॉलो अप, और वो ऐसा फॉलो अप करते हैं कि कभी कभी आप घबरा जाते हैं कि यार क्या हो गया, बट दे डू, दैट इज देयर वे ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में इस चीज का बहुत गैप है, ये चीज होनी चाहिए। आई डोंट नो आप लोग का कस्टमर फीडबैक और सब क्या है, आप किस तरह से लोगों को सेटिस्फाई करते हैं। तो मेरे लिए जो है वो ह्यूमन इंटरेक्शन और मेरे लिए आफ्टर सेल्स फीडबैक सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं उसके थ्रू अपने क्लाइंट से कनेक्ट होती हूँ और लिंक्स बनाती हूँ। और इत्तेफाकन वो लिंक्स, वो क्लाइंट्स ही मुझे बहुत सारे आगे के लिंक्स दे देते हैं, बहुत सारी चीजें बता देते हैं, बहुत सारे ऐसी शॉप्स बता देते हैं जहां पे मेरी और प्रोडक्ट्स मेरी लोग लेकर जा सके। और आपके बिजनेस के लिए क्या जरूरी है, द मेन थिंग इज यू आर सेलिंग इट, यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, और अगले का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, वो खुश हो रहा है और आपको पैसे मिल रहे हैं। दैट इज व्हाट वी वांट टू अचीव। यही एक कोर होता है हमारा कुछ भी करने का, अपना काम करने का, अगले के लिए काम ना करना और अपने लिए काम करना, दैट इज द मेन थिंग। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपका कस्टमर खुश है तो आप खुश हैं, आपकी सारी स्ट्रेटजीज कामयाब है उस वक्त। अगर कोई कुछ एडिशन करना चाहता है या कुछ बीच में बोलना चाहता है वो जरूर बोल दे प्लीज। अभी करंटली हमने अपनी रीब्रांडिंग की है। द फार्म्स के लोगो की फर्स्ट इट वाज ऑरेंज, अब हम थोड़ा सा उसका हमने रीब्रांडिंग की है, लोगो चेंज किया है, उसको फ्रेश, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक एंड प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स उसका रिफ्लेक्शन है उसका लोगो का। और उसकी जो हमने कवर बनाया है दैट इज ऑल ऑन आवर फेसबुक पेज एंड ऑल, सो दैट इज बेसिकली डिराइव फ्रॉम द नेचर। उसमें कलर्स जो है वो नेचर की डिफरेंट डिफरेंट चीजों से लिए गए हैं, ताकि जो है वो, और द फार्म्स इटसेल्फ, लोग मुझसे पूछते हैं कि जी अब आप लोग के फार्म्स हैं, फिलहाल नहीं है बट
now I am on it to buy the farm, inshallah. That's why I'm traveling all around the South and Midwest. तो जो रिफ्लेक्शन है, जो हमारा काम है, वो इसी तरीके से प्रोग्रेस करेगा. तो अभी जो है द मेन थिंग इज कि आपका एक तो आपकी ब्रांडिंग, आपकी प्रोडक्ट प्लेसमेंट, आपकी प्रोडक्ट लोगों तक कैसे जाएगी, कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा, आपकी टारगेट मार्केट क्या है, नीश है या आप मैच को टारगेट कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजीज उसी वक्त, क्योंकि गो टू स्ट्रेटजी इज लाइक चेंजिंग एवरीथिंग. अगर आप ये नहीं काम कर रहे, यू हैव टू चेंज द डिफरेंस. और कितने लोग आपके ब्रांड से अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे द फार्म्स देखते हैं, दे आर लाइक ओके दे हैव फार्म्स, दे हैव नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, जबकि हमारे पास इस वक्त तक अभी तक फार्म्स नहीं है. तो मुझसे पूछते भी हैं कि आप ये चीजें कब ला रहे हैं, ये चीजें कब ला रहे हैं. हमने कहा हाँ जी, प्रोडक्ट लाइन में है एंड वी आर ब्रिंगिंग इट, डेफिनेटली विल इंक्रीज द प्रोडक्ट लाइन. तो आपका जब क्लाइंटल बन जाता है तो दे वांट टू सी न्यू प्रोडक्ट्स, दे वांट टू सी, आपको फिर कुछ करना नहीं पड़ता, द थिंग्स आर गोइंग, बिजनेस आपके लिए खुद काम कर रहा होता है, बिकॉज आपने एक हद तक स्ट्रगल कर ली एक क्लाइंट बनाने में, एक नीश बनाने में, एक आपने अपनी प्लानिंग कर ली. लेकिन ये कि लोगों से कनेक्टिविटी आपकी कम नहीं होनी चाहिए. द मोर यू कनेक्ट विद पीपल, द मोर यू सेल योर प्रोडक्ट, आपकी बहुत एवेन्यूज खुलते हैं, आपको लोग बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं जो आपको नहीं पता होती, और आप उसको अपने बिजनेस में इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे आपका जिस भी लेवल का बिजनेस हो. वी ऑल नीड कनेक्शंस एट एवरी लेवल. तो मेरे लिए तो ये स्ट्रैटेजीज काम की हैं, और मेरा मकसद ही इस सेशन का सिर्फ ये था कि मैं कोई किताब वो बातें नहीं कर सकती जो गूगल पे लिखी हुई है. मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं उस सारी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजीज हैं जो मैंने पाकिस्तान में फॉलो की, फार्म्स को लेके मैंने इधर फॉलो की, वो सारी चीजें हैं. फार्म से पहले मैं अपना एक एंटरप्रेन्योर लाउंज चलाती थी, उसमें मैं जो है वो मेरा सर्विस बेस्ड था. आई यूज्ड टू अरेंज द इवेंट्स. मैं इसी तरह स्टार्टअप्स के लिए लोगों को लेकर आती थी, स्पीकर्स को लेकर आती थी टू सॉल्व द स्टार्टअप प्रॉब्लम्स. तो ये मैंने बहुत किया. मैं आईबी में सेशंस कराती थी, तो वो एक मेरा सर्विस ओरिएंटेड था. वो काम मेरा बहुत अजीज था. मैं उसको दोबारा से करूंगी डेफिनेटली. उसमें मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वो टोटली डिफरेंट. फिर उसके बाद फार्म्स में आ गए हम, और अब फार्म्स को मैंने यहाँ पे फॉलो किया, उसको यहाँ लेकर आई हूँ, और यहाँ पे हम एक डिफरेंट मार्केट को रीच कर रहे हैं. मुझे पता है कि अभी भी बहुत मार्केट है जो कि अनडिस्कवर्ड है, और मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी स्ट्रेटजीज लेकर आनी है अपने बिजनेस में कि मैं इसको और एक्सपैंड कर सकूं. सो आई एम स्टिल कनेक्टेड विद पीपल, और मैं स्टिल अपनी स्ट्रेटजीज नई प्रोडक्ट की बनाने इस वक्त जा रही हूँ, और मुझे नहीं पता कि उस पर कौन सी स्ट्रेटजी फिट आएगी. बट स्टिल बैग्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होती है, किसको मुझे, क्योंकि ये ग्रोसरी बैग्स हैं, आई कांट ओनली टारगेट द वुमेन, क्योंकि आदमी भी ग्रोसरी करते हैं, और जो है उन्हें भी जिस तरह से आदमी बाकी चीजें यूज कर रहे होते हैं, इस तरह से ये भी है. जिस तरह से मेरी जो सॉल्ट की डेमोग्राफिक्स में सबसे ज्यादा मुझे आदमियों ने कांटेक्ट करके हिमालयन पिंक सॉल्ट लिया. वन ऑफ द पर्सन स्टिल टेकिंग इंडिविजुअल लेवल पे मुझसे द जो हमारा जो कोर्स सॉल्ट है, बिकॉज वो स्टेक बनाते हैं और बहुत अच्छा बनाते हैं. इज अ वेरी गुड शेफ, एंड वो उनको वही वाला सॉल्ट चाहिए होता है, बिकॉज उन्हें उसकी आदत सी पड़ गई है इन 4 सालों में. मुझे नहीं पता वो उससे पहले क्या यूज करते थे, लेकिन जो है ही इज नाउ इनटू इट, और वो मुझसे हर दफा मंगवाते हैं वो चीज. तो आप, मेरी ऑडियंस जो है वो इस तरह से है कि वो मुझसे इस तरह से कनेक्टेड है. तो आप किसी भी लेवल पे अपनी चीज बेचें, किसी भी लेवल पे मार्केट करें, आप उसको इस तरह से लें कि मतलब यू ओन योर बिजनेस, यू ओन दिस. कनेक्शंस इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. दैट्स वो उसने मेरे सबसे ज्यादा हेल्प की इन एवरीथिंग. ओके, सो लास्ट स्लाइड इज द फर्म्स कवर रीब्रांडिंग, जो मैंने आपको बता दिया कि डार्क ब्लू हमारा नाइट से लिया गया है, येलो कन्वेज द डे लाइट, dark orange extracted from sunrise, green depicts the plants, brown for fertilizers and blue for water. तो हमारा मकसद यही था, और जो है इसको रीब्रांडिंग करने का. आप बहुत सारे लेवल्स पे लोग रीब्रांडिंग करते हैं, हमने 4 साल के बाद किया. 4 साल तो नहीं कहूंगी मैं इसको, बिकॉज फार्म्स हम पाकिस्तान से चला रहे हैं, इट्स बीन लाइक अराउंड 8 years. तो 4 साल उधर और 4 साल इधर, सो इट्स अ जर्नी ऑफ 8 years.
तो बट इट्स गोइंग गुड। और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो मैंने अप्लाई की वो मैंने आपको बताई, जो मेरे काम आई, जिस लेवल पे काम आई और जिस तरीके से मैंने सोचा था वो चीज नहीं हुई और डिफरेंट स्ट्रेटजीज हुई, तो वो मैंने आपके सामने बताई हैं। अगर कोई हेल्प, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप प्लीज मुझे बताएं, और अगर कोई डिस्कशंस आगे आपने करने हैं या आपने इंडिविजुअल लेवल पे मुझे कनेक्ट करना है तो आप डेफिनेटली, आई डोंट नो इफ आमना हैज माय लिंक्डइन प्रोफाइल। आमना, आपके पास मेरा लिंक्डइन एड्रेस है, इफ समवन वांट्स टू कनेक्ट तो प्लीज आप उधर से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। हेलो, हेलो, We can hear you, Samar. ओके। आमना जो है वो दूसरे रूम में, आई थिंक सो वहाँ पे नेटवर्क का कोई इशू। जी Okay. सॉरी, मैंने अभी तो अपना आपका सीवी चलाया है, इंटरनेट बंद हो गया है बिल्कुल। नो प्रॉब्लम। एनीवन, कोई स्टार्टअप है जो डिलीवरी सर्विस में काम करता हो, पर्टिकुलरली द डिलीवरी सर्विस? यस, हम लोग कर रहे हैं। मुरसलीन अहमद, मुरसलीन, आप मुझे जरा थोड़ा अपना वो बताएंगे इंट्रो। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि हमने रेप्लिकेट अच्छा, किया जो आप, नेचर। अच्छा तो चलें, हम ये एक काम कर सकते हैं कि इज देयर एनी वे वी कैन मीट यू एट NIC? बिल्कुल। ठीक है, बिकॉज आई वांट टू डू समथिंग इन US, एंड अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो आप ला सकें या कुछ इस तरह से जो हम एक्सपैंड कर सकें यहाँ पे, तो बिल्कुल, हमारे पास हाँ, पूरा सॉल्यूशन है। ओके। और कोई इनके अलावा, मुरसलीन के अलावा कोई और कर रहा है? हमारे कुछ स्टार्टअप्स हैं, आई एम नॉट श्योर कि पोस्टमैन अभी सेशन में है या नहीं। तो पोस्टमैन ओके, एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो विद इन कराची और आई थिंक सो आउट ऑफ द कंट्री या विद इन द कंट्री एज वेल, जो मल्टीपल सर्विसेज है, कोरियर प्रोवाइडर्स हैं, उसके बीच में इंटरमीडियरी एक सॉल्यूशन डेवलप कर रहे हैं कि अगर DHL से एक ऑर्डर निकला है तो फिर वो अगर किसी जगह पे DHL की एक्सेस नहीं है लेकिन TCS की या किसी और कंपनी की है, तो वो फिर वहां जाके एक्सचेंज हो जाता है। तो वो उस तरह का सोल्यूशन बना रहे हैं। इससे पहले भी हमारे पास कुछ स्टार्टअप्स रहे हैं जो कि डिलीवरी सर्विस पे, नॉट रियली डिलीवरी सर्विसेज ला दो था, बट आई थिंक उन्होंने पिवट कर लिया है। फिर ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी में स्टार्टअप्स हैं जो कि बल्क में काम कर रहे थे, तो लॉरीज है उसके अंदर, और आई थिंक सो किंग ऑफ कार्गो, किंग ऑफ फ्रीट के नाम से उन्होंने ब्रांडिंग में कुछ उनका चैलेंज आया था। तो अच्छा, हमारे पास स्टार्टअप्स तो हैं इस तरह के जो काम कर रहे होते हैं। तो क्लियरिंग फॉरवर्डिंग साइड के ऊपर भी डिस्क्रिप्शन पे काम कर रहे हैं, और बल्क में भी जो है चीजों की ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हैं स्टार्टअप्स। ओके, ओके, ओके। इस अब यहाँ पे इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड कौन कौन से हैं? और ऑल आर सर्विस बेस्ड? आप चैट में लिख करके जो जो प्रोडक्ट बेस्ड है वो चैट में, अगर सर्विस बेस्ड है तो सर्विस बेस्ड चैट में टाइप कर दें तो समझ के सी है। हम्म, और यहाँ समझ में उसका भी चैलेंज है कि हम प्रोडक्ट कह रहे होते हैं तो वो प्रोडक्ट जो है वो टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। तो NIC प्रेफर करता है कि प्रोडक्ट बेस्ड हो, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है वो इटसेल्फ जो है वो सर्विस बेस्ड होनी चाहिए। वो भी हम देख रहे होते हैं कि वो प्रोडक्ट है और मतलब अगर वो पैकेज डील की तरह होती है तो देयर इट बिकम्स अ सॉफ्टवेयर सर्विस। वो वाली प्रोडक्ट को जो हम प्रेफर कर रहे होते हैं, आई थिंक सो यहाँ भी इसकी रॉयल टीम भी है, तो वो उसमें फिट हो रहे हैं, तनख्वाह जो है उसमें फिट हो रहा है। सिंपल अगर सर्विस होते तो फिर के लिए बिजनेस डेवलपमेंट बड़ी चैलेंजिंग हो जाती है। तो बट आपके पास आंसर आ गए हमारे। ओके, तो यहाँ पे मोस्टली सर्विस बेस्ड हैं। तो मुझे सर्विस बेस्ड वाले जितने भी वो हैं वो मुझे जरा ये बताएंगे कि व्हाई दे प्रेफर सर्विस बेस्ड स्टार्टअप्स? अपना काम उन्होंने सर्विस बेस्ड क्यों प्रेफर किया rather than going into something, some product? यहाँ प्रॉब्लम्स ही इतनी ज्यादा है।
मसलन सर्विस में प्रॉब्लम्स है ना यहाँ पे। अब जैसे कि अभी आप ही कह रही हैं कि राइडर में मसला है, और हकीकत में है, क्योंकि ई कॉम की डिलीवरी नॉर्मल कुरियर डिलीवरी नहीं होती, उसमें कस्टमर को सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, कस्टमर सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। हमारे स्टार्टअप में ये चीज़ें ऐड हैं, कस्टमर की वैल्यूज को हम देख रहे हैं। अभी आप बात कर रही थी इस बारे में कि कस्टमर एक्सपीरियंस को कोई यहाँ नहीं करता, हम लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब करेंगे इंशाल्लाह। तो अगले 6 महीने में आपकी ओपिनियन चेंज होने वाली है पाकिस्तान के बारे में इंशाल्लाह। ओके, तो यानी सर्विस, आपको लगता है कि पाकिस्तान में सर्विस बेस्ड स्टार्टअप्स की ज्यादा जरूरत है जो कि सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं? जाहिर बात है, मसाइल ज्यादा है तो सर्विस चाहिए ना हर जगह। ओके, और कोई सवाल का जवाब देना चाहेगा जो सर्विस बेस्ड है? उन्होंने क्यों सर्विस बेस्ड का इंतखाब किया? Is it easy to sell than product? एक्चुअली एक हम लोगों का प्रॉब्लम है, सॉरी मैं आप लोगों को एक अदर बात है, हम लोग बात नहीं करते, मुझे नहीं पता क्यों। जी मुझे लग रहा है कि no one is talking, I don't know why. हाँ पता नहीं हम लोग बात करने में शाय क्यों है, हालांकि हमें गलत भी करनी चाहिए बात। बिल्कुल करनी चाहिए, दैट इज द मेन रीजन जो मैं आप लोग से कह रही हूँ। कनेक्शन आपकी बात करने से बनते हैं, कम्युनिकेट करने से बनते हैं, बट इफ यू आर साइलेंट अबाउट योर बिजनेस देन आपके पास सब कुछ है, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो आप 0/0, और आपके पास कुछ भी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल है तो आप कुछ ना कुछ तो कर पाएंगे इस दुनिया में। डेफिनेटली। भी पता नहीं लोग क्यों नहीं बोलते हैं, मेरी समझ से बाहर है। I'm sorry to say that. नो प्रॉब्लम। मुझे लग रहा है कि जो है इस वक्त या तो जो है वो बोर हो गए या तो फिर वो सो रहे हैं, बिकॉज आई वांट टू लिसन टू व्हाट पीपल हैव टू से रादर देन कि मैं अपना ही बोलती रहूं। जो पैशनेट होगा वो बोर कभी नहीं होगा। समझ कि थोड़ा सा जो इसका नुकसान और फायदा दोनों है ना जूम सेशन का, वो यही है कि इतनी सुबह सेशंस में लोग आते नहीं है अगर हम इन पर्सन कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि ये ऑनलाइन हो रहा है तो वो ज्वाइन कर लेते हैं और साथ में सबके काम चल रहे होते हैं। मैं खुद अभी साथ में ईमेल्स कर रहा था, वो इंटरनल एनओटीटी की ईमेल्स थी, तो ये भी एक रीजन है कि हम थोड़ा सा जो है डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बात कर रहा होता है, और लेकिन ये जूम का एक चैलेंज रहता है कि मैंने तो पूरा पूरा महीना, मेरे ख्याल में जब लॉकडाउन चल रहा था तो मैं जूम के ऊपर बैठ करके नाश्ता भी कर रहा होता था। बट एक आसान तरीका ये होता है कि हम अपनी वीडियो अगर ऑन रखते हैं तो वो जरा सा बेहतर हो जाता है, लेकिन वो भी जो है कभी बैंडविड्थ का इशू आ रहा था या कोई और चीज आ रही है। जो है मसला ये हो गया है कि मेरी वीडियो जो है वो, एक मिनट, आई डोंट नो इफ इट्स कमिंग और नॉट। यस, वी कैन सी। अब आ रही है? जी जी, यस। ओके। मैं चाहती थी कि वीडियो पर ही लोगों से बात करूं या फिर सब ऑनलाइन हो या इस तरह का सेशन हो, क्योंकि इस वक्त मेरे पास रात के 2:30 बज रहे हैं एंड स्टिल आई एम देयर टॉकिंग टू गिविंग सेशन, या फिर लोगों से बात कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि एनर्जेटिक वे में बात की जाए ताकि लोग ना सोए और ना मैं सोऊं। दैट्स द मेन थिंग। हम एक दो चीजें हैं हम थोड़ी सी और डिस्कस कर सकते हैं। एक तो आपने एक बात बताई थी जब आप पाकिस्तान आई थी, और अनस ने भी ये बात रिपीट की कि स्टार्टअप लोग एक टर्म अपने लिए यूज कर रहे होते हैं। हम प्रेफरेबली सभी को प्रेफरेबली जो है स्टार्टअप ही कह रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए जो देयर इज अ डिफरेंट टर्म फॉर इट एज वेल, वो है इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइज। और जो दूसरी टर्म जिसको लोग नहीं पसंद कर रहे होते हैं, अब आप उसको क्या कहेंगे कि सादा बिजनेस कहें या खाली बिजनेस कहें, हालांकि ना वो सादा है ना खाली है, बट द ओल्डर टर्म फॉर इट इज व्हाट माइक्रो एंटरप्राइज। और फिर अगेन जो एक नया टर्म है उसके लिए वो स्मॉल एंड ग्रोइंग बिजनेस है। तो वो आप जरा एक्सप्लेन करेंगे व्हाई यू ऑप्ट फॉर द लेटर ऑप्शन आपने, रेदर देन कॉलिंग योरसेल्फ अ स्टार्टअप। पीपू इज अ स्टार्टअप, फार्म्स इज नॉट अ स्टार्टअप, तो ये भी क्यों है? तो ये एक दिस इज एन एंगेजिंग क्वेश्चन, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि वो अपने स्टार्टअप को स्टार्टअप ना कहे या अपने बिजनेस को स्टार्टअप ना कहे। तो वो आपके पास जो रीजन है, आप वो एक रीजन जरूर बता दो।
स्टार्टअप मैंने यूएस में आके जब हम यहाँ पे मैं गई मार्केट में, तो मैंने अपने बिजनेस को इसीलिए स्टार्टअप नहीं कहा बिकॉज क्योंकि मैं फार्म्स को तकरीबन 8 साल से कर रही हूँ, तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि ये स्टार्टअप है, क्योंकि स्टार्टअप वो उस वक्त होता जब मैं उसको स्टार्ट कर रही होती। तो जो है वो इट वाज लाइक अ बिजनेस टू मी, और मैंने हमेशा से एक ठीक है वो स्टार्टअप कल्चर आया है एकदम से, तो लेकिन मैं थोड़ा उस माइंडसेट की हूँ कि मैं उसको बिजनेस, इफ इट्स अ बिजनेस इट्स प्योरली बिजनेस। ठीक है स्टार्टअप वो है, लेकिन मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स को देखा है इनिशियली वो बहुत पैशनेट होते हैं, एंड लेटर ऑन मुझे सुनने में आता है 1 साल के बाद वो स्टार्टअप बंद हो गया, वो ये बंद हो गया, उसको ये हो गया, या वट एवर रीजन की वजह से वो बंद हुआ। बट मैंने इसीलिए बिजनेस उसको इससे लगा बिकॉज फॉर बिजनेस इट्स लाइक अ सीरियस थिंग टू मी, इट्स नॉट जस्ट अ स्टार्टअप। मेरे लिए वो एक सीरियस चीज है, मैं उसको सीरियसली ले रही हूँ। और जब कोई मुझे ये कहता था कि ओके फाइन हाँ टाइम पास करने के लिए ठीक है, तो मुझे शदीद गुस्सा आता था कि भाई ये टाइम पास नहीं है, इट्स अ सीरियस थिंग, इट्स अ बिजनेस। अगर वो मेरी मेरी रोजी रोटी है, मेरा एक पैशन है, आई डोंट वांट टू वर्क फॉर समवन एल्स। तो स्टार्टअप कल्चर जब आया तो मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स को फेल होते हुए देखा। मुझे समझ नहीं आया कि इतनी स्ट्रैटेजीज, इतने बिजनेस मॉडल्स, इतनी इन्वेस्टमेंट्स के बाद भी व्हाई वो क्यों इतनी टीम बिल्डिंग, मतलब उनकी एक थरली इंक्यूबेशन हो रही होती है। सॉरी टू से मुझे एनआईसी का बिल्कुल भी नहीं पता था, मुझे पता है पीपू इज अ स्टार्टअप टू, लेकिन जो है मैं उससे बिल्कुल वो नहीं करती थी कि भाई आपने अगर कोई चीज शुरू करनी है, फॉर मी इट्स लाइक आई डोंट हैव टू क्लोज इट नो मैटर व्हाट। मुझे उसके लिए उतना ही स्ट्रगल करना है जितना अगर मैं कोई जॉब करूँ और मैं अपनी पोजीशन ऊपर लाने के लिए या अपनी डेजिग्नेशन चेंज करने के लिए करूंगी। तो वो मेरे लिए वो मेरा एक परसेप्शन है, मैं बिल्कुल भी नहीं वो करती, जिसको स्टार्टअप कहना है बिल्कुल बोले। मेरे हस्बैंड का स्टार्टअप है लेकिन मैं नहीं कहती उसे बिकॉज मेरे लिए बिजनेस और मेरे लिए काम इज लाइक अ वेरी सीरियस थिंग। और जब मैंने स्टार्टअप्स को फेल होते हुए देखा तो मैं वैसे ही टर्न ऑफ हो गई थी। आई वाज लाइक नो, मुझे नहीं बंद करना, ना मुझे कुछ इस तरह से करना है। और यहाँ पे जब से मैं यूएस में आई हूँ, व्हेन आई एम मीटिंग, और जब मैं ऑर्गेनाइजेशंस में जाती हूँ, मैं चेंबर में जाती हूँ, देयर इज नो स्टार्टअप, देयर इज अ बिजनेस थिंग। बिजनेस स्टार्टअप। हाँ मतलब बिजनेस है, इट्स लाइक ओके इट्स माय बिजनेस इज दिस, माय बिजनेस इज दिस, नो वन इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स और देयर बिजनेस 6 एज अ महीने तक स्टार्टअप। आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं स्टार्टअप, उसके बाद तो बिजनेस बिजनेस है। हाँ, that's what I'm saying. मतलब एक चीज बस और क्लियर कर दें, वो यही है कि हमारे यहाँ एक तो ना एक ऑप्टिमिज्म बाइस है, या ऑप्टिमिज्म बाइस नहीं, ये ग्रैंडियोसिटी का इशू है कि हम ये इतनी रॉकेट साइंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमारा आज आई थिंक 10th ट्रेनिंग सेशन हम करवा रहे हैं। रिपीटेटिव एक ही बात हम बताते हैं हर दफा पहले दिन से कि जी अपना पर्सोना बनाएं। पर्सोना बनाने के भी टूल्स के तरीके से भी बता दिया, डिस्कशन करके ही बता दिया कि जी पर्सोना आपके पास क्लियरली होना चाहिए, उसमें लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी है, उसमें जेंडर भी है, उसमें की सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सारी चीजें आ जाती हैं। अपनी प्रोडक्ट प्रॉपरली डिफाइन करें। अब हम कई दफा एक रिपीटेटिव इशू यही देख रहे होते हैं कि जी प्रोडक्ट है, लेकिन उस प्रोडक्ट का ये नहीं पता कि ये प्रोडक्ट कौन बाय करेगा, कितने की बाय करेगा। इसकी एब्सेंस में एक स्टार्टअप कितना अरसा शायद चल जाएगा, ये कितने अरसे जो है ना बर्न करके गुजारा कर लेंगे। ये वो रियलिटी है कि अगर किसी को ये लगता है कि हम पिवट नहीं करेंगे या चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, तो वो कितने अरसे बाद स्टार्टअप बंद हो जाएगा। ये बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम बताते हैं ना तो स्टार्टअप हमसे ज्यादा नाराज होते हैं। आपसे आप बताएंगे तो ज्यादा नाराज नहीं होंगे, और होंगे तो आपसे शिकायत नहीं कर सकते। हम हमारी शिकायत आपस में एक दूसरे से करेंगे, एनआईसी वाली ना वाले पूरी। तो जब मेंटर ट्रेनर डांट के चला जाए तो हमें हम कहते हैं जी बाहर से आए थे उन्होंने डांट के। मेरे हिसाब से तो अगर जो स्टार्टअप इस चीज के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है तो आई डोंट थिंक वो 1 साल से ज्यादा 1.5 साल से ज्यादा सर्वाइव कर सकता है। जब आपको पता ही नहीं है अपना क्लाइंट पर्सोना, आपको टारगेट ऑडियंस ही नहीं पता है, तो आप प्रोडक्ट लेके जाएंगे किसके पास, आप बेचेंगे किसको, आप मार्केट में निकलेंगे कैसे, मतलब हाउ विल यू सेल। जब आप पैसा नहीं बनाएंगे, बेचेंगे नहीं, आप पैसा नहीं बनाएंगे, तो इवेंचुअली आपका स्टार्टअप तो उस पे जाएगा ना, डाउन द ड्रेन। दैट्स द मेन थिंग। पर्सोना, क्लाइंट, टारगेट मार्केट तो आपकी बहुत होनी चाहिए। आपका बिजनेस या तो ऐसा हो कि जी इतनी नेसेसिटी में है, इतना नेसेसिटी है कि उसको मार्केटिंग की जरूरत, उसको क्लाइंट उसकी जरूरत नहीं, आपको पता है वो खरीदेगा। आप जैसे आटे की मिल है या जो भी है, दे डोंट नीड टू मार्केट। हॉस्पिटल है, मतलब दे डोंट नीड टू मार्केट, उनको पता है क्लाइंट आ जाएगा उनके पास चलता। लेकिन इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग जिसको आपको पता है कि आपने लेकर जाना है और वो आपको मार्केट रिसर्च करनी है, जैसे मेरी मार्केट रिसर्च थी रिगार्डिंग माय सॉल्ट आइटम्स,
मुझे ये पता था, मैं डरी हुई थी अंदर से, इतनी सॉल्ट प्रोडक्ट्स हैं, लोग मेरी कैसे लेंगे? मतलब आपको फिर भी डिफाइन करना है, अच्छा जी ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे। अब जैसे मुझे सुनने को मिला जी देसी तो बिल्कुल नहीं लेंगे, जो मेरे लिए शॉकिंग था। लेकिन हाँ, मैं गोरी मार्केट में चली गई, मैंने उनको बेचा, वो ले रहे थे, तो आइडेंटिफाई किया मैंने, ओके फाइन, दिस इज द प्रोडक्ट जो आपकी सबसे ज्यादा ये लोग लेंगे। मार्केट में लैम्प्स मौजूद है, वॉलमार्ट पे, टारगेट पे, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ सॉल्ट लैम्प्स, लेकिन क्या है, मैंने खुद जला के देखे, दे आर जस्ट लाइक, वो पिघले जा रहे हैं, उनकी क्वालिटी नहीं अच्छी है। आप डब्बे में से निकालें, आपको पता चल जाता है। तो एक तो आपकी कनेक्शंस, आपकी क्वालिटी, आपकी टारगेट मार्केट, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर बिजनेस। वरना चलेगा ही नहीं। आप फिर घर में बैठे हैं या फिर आप ऑनलाइन लोगों तक रीच करने की कोशिश करें, कोई नहीं जवाब देता, ठीक है, तो यू वोंट सर्वाइव। दैट्स व्हाई द स्टार्टअप्स डोंट सर्वाइव। अगर आप उसको बिजनेस बिजनेस लेते हैं, दैट इज द मेन थिंग। जो मैं उसको बिजनेस लेती हूँ, बिकॉज आई नो दिस इज अ सीरियस थिंग, आई नीड टू अर्न, आई नीड टू रीच पीपल, आई नीड टू कनेक्ट। तो किसी और के पास कोई क्वेश्चन है, और वी कैन एंड दिस सेशन। हाँ, किसी और के पास कोई क्वेश्चन है? मैं तो ये कहूंगी कि जो पाकिस्तान में है वो इंटरनेशनल मार्केट को जरूर एक्सप्लोर करें। एक्सपोजर काफी कम है पाकिस्तान में। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को देखें, यहाँ पे बिजनेस के एथिक्स इट्स टोटली डिफरेंट, और मुझे पाकिस्तान में बिजनेस एथिक्स में बहुत कमी नजर आती है। मैं खुद ऑर्डर करती हूँ, खुद चीजें लेती हूँ वहां पे, और मुझे पता है कि एथिक्स में बहुत कमी है। राइट। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, हाइपर कम्पिटिटिव मार्केट्स होती हैं, लेट्स अज्यूम जिस तरह से मैं अगर अपने स्टार्टअप की बात करूँ, इट्स इजी पानी, तो हाइपर कम्पिटिटिव मार्केट्स के अंदर चैलेंज ये होता है कि मेजर जो आप प्ले कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सर्विस कर सकते हैं पाकिस्तान में। क्वालिटी भी मैटर करती है, बट सर्विस और प्राइस पाकिस्तान में देखा है बड़े फैक्टर हैं कि ये ज्यादा पाकिस्तान को जो बायर्स हैं उनको ज्यादा अट्रैक्ट करता है, यानी बिल्कुल क्वालिटी को भी कंसीडर करते हैं, बट इट्स कम लेटर। बिल्कुल करता है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरी अपनी सॉल्ट की मिसाल मैं आपको देती हूँ। मार्केट में मौजूद है 400-800 ग्राम्स का पाउच है, कंपेटिटिव मार्केट है, मार्केट भरी पड़ी हुई है। 400-800 ग्राम्स का पाउच, जब मैं पाउच लेकर आई तो दैट वाज अ 1 केजी पाउच। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा माल तो नहीं बिकेगा 1 केजी का पाउच, बट इट वाज अ लिटिल बिट डिफरेंट। क्या था उसके अंदर? सिर्फ 1 केजी पाउच था। वो इसीलिए गया बिकॉज लोगों को ये था कि 400 और 800 हमारा फटाफट खत्म हो जाता है, तो 1 केजी सस्टेन्स और हमें ज्यादा मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पेंडेमिक में ये इसीलिए काम आया और इसीलिए बिका क्योंकि लोगों को इतना जल्दी जल्दी स्टोर्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप अगर बहुत हाइपर कंपेटिटिव मार्केट है, तो आप फिर बहुत सारी चीजें और देखते हैं कि अच्छा आप कहाँ पे कोई निश पैदा कर सकते हैं, कहाँ पे कोई निश आप लगा सकते हैं कि लोग उसको जो है आपकी प्रोडक्ट की तरफ आए या आपकी सर्विस की तरफ आए। अब चाहे आप अपनी कस्टमर सेटिस्फेक्शन से दें, आप अपनी सर्विस के जिसके भी थ्रू दें। मेरे पास कोई और निश नहीं था एक्सेप्ट दिस, क्योंकि मेरी तो मार्केट भरी पड़ी थी। जार्स हैं इतने खूबसूरत, मेरा तो सिर्फ एक पाउच था। मतलब इतने खूबसूरत जार्स हैं कि मैं कहती हूँ, लेकिन क्या है कि भाई मेरी क्वालिटी और मेरी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और मैं यहाँ थी लोगों से कनेक्ट करने के लिए, दैट्स द मेन रीजन जो जिसने मेरा सॉल्ट जो है वो उसको मार्केट तक लेकर आया। अब आप अपनी इट मींस कोई वैल्यू एडिशन कोई ना कोई ऐड करनी होगी इसमें। बिल्कुल, क्योंकि जब हाइपर कंपेटिटिव है, डेफिनेटली आपको कोई वैल्यू ऐड करनी है जो दूसरी प्रोडक्ट से या दूसरी सर्विसेज से डिफरेंट है। और किसी का कोई सवाल है? वालेकुम सलाम जी, रेहान। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जो आप बात स्टार्टअप एंड बिजनेस की, तो ठीक है, मैं किसी हद तक एग्री तो करता हूँ, लेकिन अब आपने अपनी सॉल्ट की खुद भी मिसाल भी दी कि आपने अपनी एक प्रोडक्ट बनाई, फिर आप कंफ्यूज भी रही हो, फिर आपने मार्केट को सर्च भी किया, फिर आपने डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों को फाइंड किया, फिर गोरे जो थे वो फिर वो आपसे जो चीज़ें परचेज कर रहे थे। देखिए, बिजनेस और स्टार्टअप ऑलमोस्ट द सेम नेम, लेकिन मेरे क्वेश्चन ये है कि इज द स्टार्टअप और या एंटरप्रेन्योर या जो भी आप उसको नाम दे दें, तो एज अ प्रीवियस, आई मीन द 20 years बैक और 30 years बैक, और अब की जो जिस तरह लाइफस्टाइल चेंज हो रही है,
डिजिटल जिस तरह बनता जा रहा है, तो अब लोग जो है या वीसी जो है या वीसी का नाम आ गया, अब लोग इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं एज ए स्टार्टअप के नाम पे? अब ऑफ कोर्स अपनी इक्विटी रख देना, तो बिजनेस में भी अगर आप देखा जाए दूसरे वर्ड में तो वो बिजनेस पार्टनरशिप आ जाती है, और इक्विटी अगर कोई स्टार्टअप के नाम पे वो रखता है तो वो भी एक तरह से बिजनेस पार्टनरशिप ही आती है। तो आप इसको किस तरह नाम देंगे बेसिकली? मैं नाम नहीं दूंगी, बिल्कुल आपकी बात जो है कि अच्छा ठीक है स्टार्टअप और बिजनेस, भाई मैं किसी और उसमें देखती हूँ, मैं बिजनेस, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पे सिवाय बिजनेस के मैंने और कुछ नहीं देखा। तो इट वाज लाइक अ बिजनेस बिजनेस थिंग, एक बिजनेस से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। तो जो स्टार्टअप कल्चर जब आया तो मुझे वो चीज, ठीक है हाँ स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलती है, हमें जो है वो उससे आप पार्टनरशिप पे जाते हैं, इक्विटी का जो सारी चीजें हैं वही चीज बिजनेस में भी होती है। मेरा सिर्फ ये कहना था कि जो स्टार्टअप कल्चर आया जो इतने साल के बाद जो इतना ज्यादा हुआ, मैंने उसमें लोगों को इन्वेस्ट करते हुए भी देखा और स्टार्टअप में से इन्वेस्टमेंट निकालते हुए भी देखा, जस्ट बिकॉज के एक बिजनेस जो होता है, जब मैं कहती हूँ कि जी 3-4 साल हो गए हैं, इट्स अ कंसिस्टेंट थिंग। स्टार्टअप इज अ इनिशियल स्टेज जहां बंदे ने शुरू किया है, उस पे अगर कोई इन्वेस्ट करेगा, बाद में आपको नहीं पता कि वो स्टार्टअप बैठ रहा है या उनके अंदर कंसिस्टेंसी है, उनके पास वो टीम है टू रन दैट स्टार्टअप, आप उसको चला सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट्स को उतना कर सकते हैं। मैंने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं लिए बिकॉज आई नो कि मेरा जो है वो इनिशियल फेज था यहाँ पे सेटलिंग का, तो मुझे फंड्स ज्यादा चाहिए थे, लेकिन स्टिल नो, मैंने नहीं लिया फंड्स। मैं जितना अपने तौर से कर सकती थी आई डिड दैट। अगर मैं इस लेवल पर आके किसी को पार्टनर बनाना चाहूंगी तो दैट विल बी ऑन माय टर्म्स, क्योंकि मेरा बिजनेस मुझे पता इतना है कि दैट पर्सन विल इन्वेस्ट और वो मेरे टर्म्स पे करेगा। बट स्टार्टअप में इनिशियल फेज पे आपके टर्म्स पे बाज दफा इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता, उसको इक्विटी चाहिए होती है, लेकिन उसकी उसके अंदर आपके स्टार्टअप के अंदर फिर उसकी से जो है वो भी फिर बहुत ज्यादा होती है। समटाइम्स आप उसको नहीं कैच कर पाते या आप उसको नहीं कर पाते। दैट इज व्हाट आई ऑब्जर्व्ड। मुझे ये नहीं पता कि जो आप लोग इंक्यूबेट हो रहे हैं या आप लोग स्टार्टअप उसमें हैं, आप लोग ने क्या फेस किया रिगार्डिंग इन्वेस्टर्स, बट जो मैंने ऑब्जर्व किया और जितने मैंने सेशंस अटेंड किए वहां पे स्टार्टअप्स के और इन्वेस्टर्स के, तो मुझे जो है वो चीज कंफर्टेबल नहीं लगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे वो बिजनेस में बातचीत, जी बोले। देखें आपकी बात किसी तक ठीक है, लेकिन आप ये चीज को तो एक्सेप्ट करेंगी कि देखिए बेसिकली अब जो न्यू जनरेशन है ड्यूरिंग द स्टडी एंड आफ्टर द स्टडी, अब उनके अंदर बेसिकली एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया ना कि उनके जो माइंड सेट है, उनके पास जो आइडियाज है, उनके पास जो है, तो वो बेसिकली एक टेबल के ऊपर ला रहे हैं, एक फोरम के ऊपर ला रहे हैं, क्योंकि अब सपोर्ट्स का भी जो सिस्टम था वो चेंज होता जा रहा है। यंग जनरेशन, पहली बात है कि देखिए एक आइडिया होता था जो किसी से शेयर नहीं किया जाता था पहले, और पहले एक तरफ यही कहा जाता था कि आपकी स्टडी और जॉब करनी, और जो बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट था वो जो बिजनेस माइंडेड लोग थे वही लोग करते थे, इसके अलावा कोई नहीं करता, जितनी मतलब मेरी नॉलेज है। लेकिन आजकल वो चेंज हो गया, तो वो चेंज होने के बाद जो है अब हर यंग जो जनरेशन है वो अपने आइडियाज रख रही है, बिजनेस की तरफ जा रही है। जहाँ तक सक्सेस एंड फेलियर की बात है वो तो ऑफकोर्स हर जगह आएगा, लेकिन नहीं वो उससे है, लर्निंग भी तो होगी ना। बिजनेस में भी आप फेल होते हैं, आई एग्री विद दैट। मैंने ये नहीं कहा कि आप बिजनेस में फेल नहीं होते, लेकिन जो है कुछ मैंने स्टार्टअप्स खुद भी ऑब्जर्व किए और देखे। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप अपने आप को स्टार्टअप ना बोलें, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लोग आइडियाज ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि लोग अब आ रहे हैं और बिजनेस की तरफ आ रहे हैं, वो तो इससे चलो कोई अच्छी बात ही नहीं हो सकती है। लेकिन द थिंग इज इफ यू आर ब्रिंगिंग द आइडिया ऑन द टेबल, तो आप अगर आइडिया लेकर आ रहे हैं ना, तो फिर आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसको एग्जीक्यूट करने की और उसको एक लेवल पे लेके जाने की। ठीक है, फेलियर और नो फेलियर्स वो किसी भी लेवल पे हो सकते हैं। कभी कभी बिजनेस 5-6 साल बाद, 10 साल बाद भी फेल हो जाते हैं। यहाँ पे आपको पता है बैंक मुझे लोन नहीं दे रही थी जस्ट बिकॉज कि उनको ये पता है कि यहाँ पे बिजनेस 2 साल के बाद भी फेल हो जाता है। आपको 4 या 5 साल के बाद जाके बैंक आपको लोन देती हैं या फंड्स देती हैं कि आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करें। दे डोंट इन्वेस्ट इन यू, या कोई भी इनिशियल लेवल पे बहुत सारे लोगों को आइडियाज, वही मेरा कहना है कि जब स्टार्टअप का एक आइडिया होता है उसमें जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, मुझे वो इसलिए नहीं समझ आया क्योंकि मेरा बिजनेस मेरा पैशन था और मुझे उसमें किसी की इंटरफेरेंस पसंद नहीं थी। बट अगर आपके पास एक आइडिया और आप चाहते हैं कि आप उसके अंदर फंडिंग्स लें, इन्वेस्टमेंट्स लें, तो फिर आप अगर चाहते हैं कि कोई तीसरा बंदा आए अंदर कूदे और वो आपको एक तरह से, ये एक कुछ लेवल पे ये सही भी है कि एक बंदा अपनी नॉलेज लेके आ रहा है या अपनी कनेक्शंस लेके आ रहा है, वो एक स्टार्टअप को उठा सकता है।
बट कभी कभी ये चीज उल्टी भी पड़ जाती है, तो इट डजेंट मैटर। मेरा सिर्फ कहने का मकसद था कि मेरा वो परसेप्शन है। मैं ये नहीं कह रही कि जो है मैं एक्सेप्ट नहीं करती या मैं उसको वो नहीं करती, मेरा हरगिज ये कहने का मकसद नहीं था। आप स्टार्टअप कल्चर जो है वो मेरे माइंडसेट को नहीं समझ आता, लेकिन वैसे इट इज देयर एंड इट्स अ गुड थिंग कि आप लोग आगे आ रहे हैं और बिजनेस आइडियाज लेकर आ रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। हेलो हाँ जी, हेलो जी। बिजनेस आइडिया के साथ बिजनेस बैकग्राउंड भी बहुत जरूरी है। लोग इन्वेस्टमेंट लेने को ही कामयाबी समझ लेते हैं, जबकि वो मेरे हिसाब से तो यही है कि जब तक आप खुद चला सकते हैं अपने आइडिया को, पूरी तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो करना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ रही है जब आप एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आपके पास प्लान हो, कोई आकर आपको इक्विटी की बेस पे जो है वो आपका आइडिया खराब ना करे। आप बिल्कुल करेक्ट कह रही हैं इस बात। एग्जैक्टली जो मेरे कहने का मतलब है कि आपका आइडिया खराब ना करे। वो आइडिया होता कुछ और है, वो बन कुछ और जाता है, और फिर लेटर ऑन जब स्टार्टअप्स या जो भी बंदा जिसने स्टार्ट किया है, अगर वो चीज उसके दिमाग के हिसाब से नहीं है जो उसने सोचा था, वो चीज नहीं हो रही है, इवेंचुअली वो उसका इंटरेस्ट उसमें से खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही दैट है। इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। मैं ये नहीं कह रही, बहुत जगहों पे ये कामयाब भी होती है, क्योंकि हर दफा इन्वेस्टर एक जैसा नहीं होता। कभी कभी इन्वेस्टर अपने लिंक्स, अपने कनेक्शंस और अपना पैशन लेके भी आता है। इट ऑल डिपेंड्स। मुझे मेरा ये कहना है कि जी इनिशियल लेवल पर तो इन्वेस्टमेंट्स आपको लेनी ही नहीं चाहिए, फंडिंग्स। मेरा ये कहना है, दैट इज व्हाट आई प्रेफर। आगे बाकी जो लोग जिसका जो भी परसेप्शन है, दैट इज, मैं उससे बिल्कुल इनकारी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत चीजें अलग अलग सूट करती हैं। बिल्कुल नई जनरेशन इस वक्त बहुत ज्यादा उसमें आ रही है, लेकिन वही है कि जो मैंने जिस तरह से बोला वो मेरा परसेप्शन है, वो आपका अपना बिल्कुल चॉइस होगी, कोई मसला नहीं। बिजनेस बैकग्राउंड आपका है तो बिल्कुल आप राइट बात कर रही हैं, और जिसका भी होगा उसका दिमाग काम करता है, ऐसा ही काम करता है। और किसी के कोई सवाल है या कोई चीज कोई शेयर करना चाहते हो, वो जरूर करें प्लीज। श्योर, मैं समझ इसमें बस क्या कहते हैं, दो बस सेंस ऐड कर दूं, and I totally agree with the fact, and thank you very much for sharing all the experience. I think being as a part of Nick, or because this is my like first session, usually मेरे वो co-founder होते हैं, and I myself have has more than 10 years of experience building the digital mobile application for the international startups globally. And in Pakistan as well, I had an experience working with the JDOT and Daraz as well, establishing their whole inventory management and dispatching systems. So I think ये बस हमें थोड़ा सा understand करना पड़ेगा कि what is business and what is startup. Not every business is a startup, and terms use हो सकती हैं, क्योंकि देखें जब business होता है ना, restaurant, कोई भी ऐसा बिजनेस जो कि उसका मॉडल ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, मिठाइयाँ पहले भी बिकती थी, बेकरियाँ पहले भी होती थी, बट यूनाइटेड किंग ने आके उसको थोड़ा रीडिफाइन किया। उसने उसके अंदर कस्टमर एक्सपीरियंस को वो सेटिस्फैक्शन के लेवल से वाव लेवल के ऊपर लेकर गया। ठीक है, तो बिजनेसेस आर देयर। कुछ लोग होते हैं कि वो यार मेरा मतलब अक्सर एक फेसबुक के ऊपर पेज है सोल ब्रदर्स, वहाँ पे यार भाइयों मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था, वो बेसिकली होता है एक बारबेक्यू का सेटअप है। दैट्स नॉट स्टार्टअप, दैट्स अ बिजनेस। यू माइट लैक सम बिजनेस रनिंग स्किल्स, क्योंकि स्टार्टअप इज समथिंग के यू ब्रिंग ऑन ए डिस्ट्रप्टिव आइडिया, और वो आइडिया इतना डिस्ट्रप्टिव होता है दैट यू नीड enforcement in terms of financials and manpower to take it to the next level in a quick way, क्योंकि आपके पास वो मॉडल टेस्टेड नहीं होता, आपको उसे टेस्ट करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है ये एग्जिस्ट करता है। जैसे कि हमारे पास करीम आया था, 300 रुपए के ऊपर राइड्स मिलती थी पूरे कराची के अंदर। अगर आपको मलीर से अगर आपको जैक्सन मार्केट जाना है, 300 रुपए के अंदर GLI करोला के अंदर आप 300 रुपए में जाते थे। दैट वाज द डिस्ट्रप्टिव आइडिया, कि जहाँ पे लोग पैसा लगा रहे थे उसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाने के लिए, सो दैट पीपल स्टार्ट using it, they get familiar with it. So I always teach myself ke if I'm doing something, because kapda, it's a business, it still exists in the market, but what we are trying to do, or what others are trying to do, is to bringing in the tech and see like how they can address the existing problems, and usko hum log किस तरह efficiently solve कर सकते हैं। Product management के अंदर there is a term that I learned from the experts, okay, when you're working on a product, now always think that how many clicks you are doing in order to perform a certain action, and your job is to make sure you always reduce the clicks.
so that user perform that action as quickly as possible. So if you are having a checkout process जिसके अंदर आपके 10 clicks involved हैं, there is a chance कि user 7वें click के बाद छोड़ दे. लेकिन अगर वो 2 clicks के ऊपर होगा तो you will have higher chances to secure that sale. So this is like just wanted to add कि maybe हम लोग startup के अंदर या business के अंदर we everybody is working doing amazing work, but just के हम बस उसका जो रूह है बस हम उसको पकड़ के रखें कि बिजनेस के अंदर हमें क्या क्या चीजें should be there, whether it is exactly. तो अब my husband's the startup is Peepoo. That is a startup because that is on an initial level. वो product उन्होंने खुद innovate की है और खुद लेकर आए हैं market में, खुद उसको table पे idea लेकर आए हैं. That is not in the market. वो पहले नहीं थी market में, वो अगर है भी तो एक आध जगह पर international level पे. So that is what I call the startup कि भाई वो एक idea है, उसको एक growth उसको चाहिए. They need investors. Business is business. It's like the farms is a business. What I'm doing is a business. That's why I don't call it a startup because that is what I'm selling. Yep. हाँ, अगर मैं अपनी कोई product line बनाकर लेकर आऊंगी, that is I called हाँ भाई ठीक है ये मेरा initial level है, that is a startup. I need funding to scale that up. इसीलिए मैंने अपने business को कभी startup नहीं बोला. That is the main reason. Hello. जैसे स्टार्टअप उसको अपने दिल में ही बोलना चाहिए, जब आप किसी पार्टी से मिले तो उसको बिजनेस ही बताना चाहिए. इस पे बहुत ज्यादा आर्गुमेंट होता है. सॉरी. कोई और कुछ कहना चाहेगा इस बारे में या किसी और चीज को शेयर करना चाहेगा, कोई अपनी स्ट्रेटेजी जो उसने लगाई हो और वो फेल हो गई हो या फिर वो बहुत ही क्लिक हो गई हो? हेलो. मैं डोमिनेट नहीं करना चाहता था, मैं बोल सकता हूँ. मैं चाहूंगी कि और लोग भी कुछ अपना इनपुट दें बिकॉज मेरे ख्याल में टाइम भी ओवर होने वाला है. अंदील यहाँ पर है, हम आई गेस. जी हम हैं यहाँ पर. अच्छा आप हैं. हम ये कहना चाह रहे थे कि अगर if nobody has any other questions तो हम सब अपने कैमरास ऑन कर लें और हम एक ग्रुप फोटो भी ले लें प्लीज. बिल्कुल. अगर सब अपने कैमरास ऑन कर लें. हमें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि अनस सेशन में आए हैं. वरना अनस सेशन है. अब हमें समझ में आ गया कि हमें अनस सेशन में कैसे बुलाना है. हम बल्कि अब ये सेशन तो हम रिपोर्ट करेंगे इग्नाइट को, देखें एलुमनाई को एंगेज किए. नाउ वी नो हाउ टू एंगेज आवर एलुमनाई. मैंने रूम नंबर नहीं पूछा किसी से इस बार. जब नंबर पूछा था इसमें किसी कुछ नहीं पूछा. उसके बाद आज ये पहली मरतबा सेशन मैंने अटेंड किया. तो अनस तुम सुबह टाइम पे उठा करो, तुम्हारी तबीयत सही रहेगी हमारी तरह. तुम लोग जल्दी सोया करो, तुम लोग की तबीयत नहीं रहेगी. अच्छा, आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि मैं 3 तक काउंट करूंगी. 1 सेकेंड.